नमस्ते। आप सबको मेरा प्रणाम। Welcome all you beautiful souls. It's so nice to be here with all of you today, close to the new moon, over this beautiful Devi Shakti workshop. आज हम ये 3 दिन की जर्नी साथ में, आज कल और परसों, on this beautiful Devi Circle platform, देवी शक्ति के वर्कशॉप के अंदर देवी क्रिया सीखेंगे। आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते। So nice to see all of you here. So आप लोगों में से, I'm sure some of you already must have learned this क्रिया। तो मैं चाहती हूँ कि आज हम ये जो वर्कशॉप है साथ में इंटरैक्टिव तरीके से, यानी कि हम सिर्फ सुने नहीं, लेकिन अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो, आप सवाल हो या कुछ आप शेयर करना चाहें, तो प्लीज आप अपने स्क्रीन पे जो इमोजीज हैं आप हार्ट रख सकते हैं। अगर आप किसी चीज से सहमत हैं, इफ यू आर इन अग्रीमेंट विद समथिंग, यू कैन पुट अ थम्स अप, यू कैन रेज योर हैंड इफ यू वांट टू आस्क समथिंग व्हेन आई टेल यू, एंड देन आई विल आल्सो cater to the questions. Voice is good for you, Bhumi. Okay, that's wonderful. आप सब सुन पा रहे हैं, अच्छे से देख पा रहे हैं? Put your thumbs up. Yes, wonderful, wonderful. तो मैं हूँ रीनी मनसाटा. I'm a Devi Kriya teacher on this beautiful divine Devi Circle platform. और मैं देवी क्रिया पिछले 2019 से सिखा रही हूँ. So I'm so happy and grateful to have this opportunity. देवी क्रिया है बहुत ही डिवाइन पावरफुल ब्रीदिंग प्रोसेस है जो पार्वती माँ, गॉडेस पार्वती की एनर्जी से चैनल किया गया है. So are you all comfortable in both English and Hindi? Yes? Okay, wonderful. Because we have people from outside India and India. So I will try to speak in a manner which is simple, easy to understand. Okay, great. That's nice that you all know how to interact, use emojis, so that we can all understand. ये जो क्रिया है देवी क्रिया is very beautiful, very powerful, और इसे समझना और अच्छे से सीखना बहुत जरूरी है. It's very important to understand it and to learn it correctly, which is why communicating, interacting is very important. Okay. So a little bit about myself. I am based in Mumbai in India. And I am a singer, songwriter, I'm a sound healer, I do tarot readings, and I'm a meditation guide. And I was blessed to be one of the chosen people to teach Devi Kriya. And so I'm here amongst all of you beautiful people doing that once again. तो आज हम पहले मैं चाहती हूँ कि हम सब एक तरह से अच्छे से जुड़ जाएं, कनेक्ट हो जाएं, right? Energetically, we are all in different places. We are all, you know, we're all in our houses, maybe somewhere else or whatever, in different parts of India and different parts of the world. तो मैं चाहती हूँ कि हम पहले पूरी तरह से हम वर्तमान में आ जाएं, so that we all come completely into the present and connect with each other and the beautiful divine energies that are present already. तो दिव्य शक्तियां already हमारे पास, हमारे इस ग्रुप में एनर्जी की तरह आ चुकी हैं, और मैं चाहती हूँ कि ये सब हम महसूस कर पाए. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. आप पहले तो बड़े आराम से सीधा बैठिए. एवरीबडी प्लीज सिट स्ट्रेट विथ योर बैक इरेक्ट एंड लेट्स कीप अ नाइस स्माइल ऑन योर फेस. सब मुस्कुराइए, क्योंकि जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो ऊर्जा है, वो खुल जाती है, ओपन हो जाती है. वी ओपन आवर एनर्जीज व्हेन वी स्माइल, बिकॉज देन वी आर ओपन, वी वेलकम. And what we are going to experience, जो हम सीखेंगे, everything that we will encounter today is going to be divine, right? तो हम जब इतनी दिव्य शक्तियां और चीजें को सीखेंगे और उसे महसूस करेंगे, तो हमें खुला होना तो बहुत जरूरी है, right? If your door is closed, then the most best thing cannot come in. So completely coming into the present, let us now with a smile take a nice deep breath from your nose. नाक से सांस लेते हुए
smiling and breathing this powerful, beautiful energy of the present. Feeling that breath going into your chest, आपके छाती में, पेट में पूरी तरह से सांस लेते हुए, and breathe out. मुंह से सांस जैसे कि आप कैंडल ब्लो कर रहे हैं करते हुए. वापस एक बार अच्छे से नाक से लंबी गहरी सांस लेंगे. Slowly breathe in from your nose with a nice smile, breathing in this positive energy, filling your chest, filling your belly. And let's breathe out from your mouth. One more time. Let's breathe in from your nose. Breathing joy, breathing positivity, breathing energy. And breathe out very slowly from your mouth. Wonderful. अब हम और energize हो जाएंगे. So let us do a little bit of movement. तो आप अपने हाथ इस तरह से हिलाइए, on the side, on the ऊपर. नाक से सांस लेते हुए, मुस्कुराते हुए, जैसे कि आप अपने आजू बाजू की एनर्जी को क्लियर कर रहे हैं. अपने हाथ को हिला रहे हैं, कंधों को इस तरह से धीरे धीरे गोल घुमा रहे हैं. Move your shoulders, rotate them. Let's move our faces, अपना गर्दन. सांस लेते हुए, मुस्कुराते हुए, ऊपर, नीचे, right, left. Wonderful. हम बस फ्रेश होते हुए, एनर्जाइज होते हुए पूरी तरह से वर्तमान में आ जाएंगे. We're coming into the present. Please keep water next to you. पानी अपने पास रखिए, पीते रहिए. बहुत जरूरी है to drink lots of water. It's good to be hydrated. Energies are powerful. जब energy strong रहती है तो हमें ज्यादा पानी पीने की आवश्यकता रहती है, right? Because then we can process better. Okay. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं. I want, like I said, the session to be interactive. तो पहले मैं आपको शुरू करती हूँ थोड़ा कुछ देवी क्रिया के बारे में बताकर कि ये कैसे शुरू हुआ, इसका रूट क्या है, पार्वती जी से कैसे ये डाउनलोड हुआ, और इसके फायदे. इसके बाद हम धीरे धीरे मैं आपके इस क्रिया को समझने के थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपसे आज शेयर करना चाहती हूँ. And after I share the concepts so that you understand where this comes from, how it helps us, and what are the various things we need to understand about it, you're welcome to ask me questions if you have any. And today, after we really understand everything, we will move on and then learn the actual process. Okay? So, to start with, देवी क्रिया है, ये एक क्रिया है. So, क्रिया क्या होता है? Activity, action, right? तो ये हमारी सांसें हैं, the breath. Pranayam, we all know what pranayams are, right? So basically, using breathing pranayams, different ones, in a certain pattern, in a set way, in phases, okay? There are 4 phases in Devi Kriya, which I will teach you. We very consciously do these breathing exercises along with visualization. So it's a kind of a meditation also. And with the understanding of what we are doing, which I will explain to you today in today's session. We practice this kriya, which is about half an hour every day. And what that does is, it slowly silences your mind. हमारा जो मन है, उसे पूरी तरह से ये क्रिया, जो हमारी सांसों द्वारा हम प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन के जैसे ये 30 minutes का कैप्सूल है, हमारे मन को शांत करते हुए हमें ये पूरी तरह से एक emptiness, शून्य की स्थिति में ले जाती है. और फिर जो हमें experiences होते हैं, the kind of experiences we can have are divine. We can channel, we can connect with all our masters, we can have beautiful experiences, we can heal ourselves, we can become so relaxed, we can change ourselves, we can change our lives, we can change our health, we can change our patterns, we can clear our blocks. Everything is possible because we are spiritual beings having a human experience. इसका मतलब क्या है कि हम एक्चुअली दिव्य आत्माएं हैं. हम ऑलरेडी दिव्य शक्तियां हैं जो हम इस वक्त इस टाइम पे पृथ्वी पे मनुष्य के रूप में आए हैं. हम
लेकिन हम हैं तो सब दिव्य। तो जब हम यहाँ पर हैं, हम और सीखने के लिए आते हैं, लेकिन जो हमारा पूरी तरह से प्रकाशित स्वरूप है, our fully enlightened self already exists, and that is something that we can also connect with. तो हम अपने प्रकाशित स्वरूप और हायर सेल्फ से भी इस क्रिया के दौरान कनेक्ट होना सीखेंगे. So we will learn how to connect with our higher self in the part and process of learning this kriya. Okay, so let me give you a quick background. A Thousand Seeds of Joy. ये जो book है, ये किताब, A Thousand Seeds of Joy, written by Ananda Karunesh ji, right? So he was a beautiful divine soul. I think, I don't know if he's with us. He's the founder of Devi Circle. He was a mathematician and a very evolved soul who was always very connected to the energy of goddess Lakshmi mostly, and then goddess Saraswati. Of course, moving on to a lot of all the other goddesses as well. So unhone ye jo kitab, this book, The Thousand Seeds of Joy, he channeled this book. So this book is not his ideas or his knowledge. This is a channeled book, which means that he, in his state of meditation, has taken 8 years to really write this book with connection with goddess Lakshmi and goddess Saraswati, and in a question answer format. He has asked questions to goddess Lakshmi, and she has answered in his channeling, and asked questions to goddess Saraswati, and she has answered. And all of this information, which includes the most beautiful concepts, spiritual concepts, which are so powerful and eye-opening, they are all there as a part of this book. So ye jo kitab hai, I urge you all, if you have not read it already, to get a copy and read it, because you will understand so many more things, and it'll be a beautiful journey. It'll be a beautiful part of your spiritual journey if you are interested. Okay, A Thousand Seeds of Joy by Ananda Karunesh ji. Now, in this book, there were some beautiful concepts which I will share with you, which are relevant to the kriya. So इस क्रिया में थोड़े बहुत जो concepts हैं, जो लक्ष्मी जी और सरस्वती जी ने शेयर किए हैं हमारे चक्र के बारे में, हमारे अलग अलग कॉन्शियसनेस के बारे में, हमारे मन, हमारी आत्मा, हमारे शरीर के बारे में, वो सब मैं आपको आज बताऊंगी, so that you can understand how this kriya makes sense. लेकिन फिर ये बुक लिखने के बाद अब जो उनकी दूसरी बुक जिस पे वो काम कर रहे हैं, जिसको वो लिख रहे हैं, that is Messages and Channeled Information from Goddess पार्वती जी. लेकिन ये जो बुक जो अभी तक रेडी नहीं है, इस बुक के पहले गॉडेस पार्वती जी's एनर्जी से एक क्रिया he channeled. So he started getting a download and started getting this information that a kriya should be done, right? Because jo Shiv and Parvati, they were yogis, right? And they believed in a lot of breathing, breath work. They believed in yoga. They believed in a lot of these physical practices in the form of meditation. And so Parvati ji channeled this kriya called Devi Kriya to Ananda Karunesh ji, and he started working towards it. I had the good fortune, because I'm a singer and songwriter, that I have recorded all the mantras which are a part of the first book, Thousand Seeds of Joy, in my voice. And in fact, Ananda Karunesh ji is also singing one of the mantras with me, Aham Prema. So when we were recording this album in the US, he shared with me that this kriya is coming through by goddess Parvati ji, and he taught me the steps of the kriya, and I feel very blessed that maybe I was meant to be there and learn it, and I started practicing it and then teaching it to everybody around the world. तो धीरे धीरे ये क्रिया मैं सब जगह सबको सिखाने लगी, और फिर because of the musical background हमने इसमें visualizations भी है क्योंकि मैं meditation भी करती हूँ, and that helps, and the beats of hang drum, that brings the sound जो होता है, sound से और meditation deep हो जाता है. So the beats of the drums along with the breath, the visualization, and this powerful kriya channeled by goddess Parvati ji, this beautiful kriya called Devi Kriya has come about. And this has been not
just like a one-time process. This has taken some time, and धीरे 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 करते हुए ये 4 phases जो हमें पूरी तरह से emptiness, शून्यता में ले जाती है, ये इस तरह से ये क्रिया has come about. All right. So this is about Devi Kriya, and now let me start with. Actually, before anything else, does anybody have any questions अभी तक? अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं. थोड़ा हिंदी, हाँ, मैं हिंदी में I am speaking in Hindi as much as I can, so don't worry, you will all understand everything that needs to be. ठीक है. तो ठीक है, हम शुरू करते हैं with the concepts. So the first concept is we are spiritual beings having a human experience. तो हम actually already, हमारी आत्माएं जो हैं वो हर जन्म में अलग अलग स्वरूप में आती हैं, right? So इस lifetime, in this life, I am born, मैं रीनी एक इंडियन लड़की के स्वरूप में मैंने जन्म लिया है, right? So I can see Priyanka Gautam ji. So she is a lady. So she is born here as her. Sejal ji is another lady born here. तो हम सब ने ये चुना है कि हम इस लाइफटाइम में पृथ्वी पर ऑन अर्थ इस जन्म में या तो फिर मेल या तो फिर फीमेल, जिस भी घर में, जिस भी जगह में, जिस भी परिवार में हमने जन्म लिया है, वो लिया है ताकि हमें जो भी सीखने को मिले, whatever we are supposed to learn, we are able to do in this life course. After we are no more, एक बार हम ये लाइफ पूरी होने के बाद we reincarnate, हम वापस अगले जन्म में कुछ और बन के वापस आएंगे, लेकिन आपकी जो आत्मा है वो वही है. So we keep reincarnating, the same soul will keep coming on this journey to learn as different people, right? But the soul is the very same. It just keeps growing and keeps evolving through every lifetime. तो हर जन्म में हमारी आत्मा सीखती है, समझती है और ज्यादा इवॉल्व होती रहती है, लेकिन फिर हम वापस रीबर्थ करके वापस आएंगे, राइट? सो बेसिकली वी हैव 4 levels. तो हमारे 4 भाग है कॉन्शियसनेस के. द फर्स्ट इज आवर माइंड, हमारा मन, राइट? सेकंड इज बॉडी, आवर शरीर, which is basically हमारा तन, हमारा शरीर, which is our body. Third is our soul, हमारी आत्मा, right? And fourth is our higher self, which is हमारा पूरी तरह से प्रकाशित स्वरूप. So जो हमारी आत्मा जो पूरी तरह से प्रकाशित है, दिव्य है, वो जो कॉन्शियसनेस लेवल पे है, वो उसे हम कहते हैं हमारा प्रकाशित स्वरूप और our fully enlightened self, our higher self. तो ये 4 भाग हो गए हमारे खुद के, हमारे कॉन्शियसनेस के. मन, शरीर, आत्मा और फिर परमात्मा के जैसे हमारा higher self, which is our prakashit swarup. Do you understand that? The four parts? Okay. So I'm going to ask you a question and I want you to type, okay, iska answer, just so that we can understand. तो हमारा तीसरा भाग कौन सा है? आप टाइप कर सकते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में, it's okay. Yes, very good. You're all paying attention. Fantastic. Soul. And हमारा चौथा स्वरूप कौन सा है? Most important. Which is our 4th level of consciousness? Higher self. Excellent. Wonderful. Well, you guys are such great students. It's wonderful. ये बहुत ही simple है, लेकिन जरूरी है समझना. Now, great. Good job. Okay, so let's move on. तो ये हमारे अलग अलग भाग हो गए. Now, हमारा जो शरीर है, right? मैं अगर आपको कहूं कि हमारे 2 शरीर हैं, we have 2 bodies, okay? One is our physical body, right? जो हमारा ये शरीर है, शारीरिक स्वरूप है, physical body. दूसरा बॉडी कौन सा है हमारा? क्या आप सोच सकते हैं या आप बता सकते हैं? आप टाइप कर सकते हैं अगर आपको आइडिया हो या कुछ आप गेस करना चाहें. Would you like to guess what is our second etheric, astral, energy? Yes, very simple. Energy body. Very good. तो 2 bodies हैं, physical body and energy body.
वेरी गुड, ऑल द आंसर्स आर मोर और लेस करेक्ट। जो हमारा एनर्जी बॉडी है वो हमारे फिजिकल बॉडी से कई गुना ज्यादा बड़ा है, राइट? सो आवर फिजिकल बॉडी is much smaller than our energy body, and everything that happens to us first enters through our energy body and then it comes towards our physical body. तो जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है, अगर हम मान लीजिए कभी बीमार भी पड़ जाते हैं, तो वो जो भी जिस भी वजह से वो हो रहा है वो पहले हमारी एनर्जी बॉडी में वो शुरू हो जाता है उसका असर, फिर धीरे धीरे वो हमारे शरीर तक आता है। तो हम चाहें तो अपनी एनर्जी अगर क्लियर रखते हुए अपने शरीर को एकदम प्योर रख सकते हैं। we can prevent our body from getting affected by becoming so aware। हम अपने चेतना द्वारा अगर हम पूरी तरह से अवेयर रहें, अपनी एनर्जी को इतना क्लियर रख सकते हैं कि हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती हैं। सो दैट्स द ब्यूटी। सो नाउ जिस प्रकार हमारे जो शरीर में इन आवर बॉडी, इन आवर फिजिकल बॉडी वी हैव डिफरेंट ऑर्गन्स, राइट? different organs. Same way in the energy body, हमारी जो एनर्जी बॉडी है उसमें होते हैं अलग अलग चक्रस, ऑलराइट? और चक्र क्या होता है? एनर्जी पॉइंट। चक्र का मतलब है एनर्जी पॉइंट। तो हमारे जो शरीर में जो सब ऑर्गन्स हैं, सारे नर्व्स है, हमारा नर्वस सिस्टम है, नाड़ियां हैं, सब कुछ है। इस तरह से हमारे इथेरिक बॉडी जो एनर्जी बॉडी है उसमें 72,000 एनर्जी पाथवेज हैं, 72,000 नाड़ियां, राइट? और हर नाड़ी एक दूसरे से जो इंटरसेक्ट होती है, राइट? तो पॉइंट बनता है। जब दो चीजें इंटरसेक्ट होती हैं तो पॉइंट बनता है, राइट? तो वो सारे जो पॉइंट्स हैं वो एनर्जी पॉइंट्स हो गए, क्योंकि एनर्जी बॉडी में एनर्जी पाथवेज के कनेक्शन पॉइंट्स हो गए एनर्जी पॉइंट्स। दैट मीन्स दोज आर ऑल चक्रस, ठीक है? So we keep hearing about 7 chakras, but we have actually many chakras, 114 chakras, in Shiv Swarodhya, Lord Shiv and Parvati have worked on 114. हर चक्र को एक चक्र को मेडिटेशन के साथ कैसे खोल सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि हमारी जो एनर्जी है उसके जो चक्रस हैं उसके पॉइंट्स को कहते हैं चक्रस। अब ये 7 चक्रस दैट वी कीप टॉकिंग अबाउट, राइट? हम सबने सुना हुआ है ना चक्रस के, सब समझ गए चक्र क्या है? चक्र एनर्जी पॉइंट, ठीक है? और कितने चक्रस हैं? बहुत सारे चक्रस हैं, लेकिन हम कितने चक्र के बारे में हमेशा बात करते हैं या सुना हुआ है हम सब ने? 7, राइट? हम सब 7 चक्र के बारे में सुनते हुए, करेक्ट? 7 कलर्स जो रेनबो के कलर्स हैं, जो इंद्रधनुष के कलर्स हैं, वो 7 कलर्स, वो चक्रस के भी वही कलर्स रहते हैं। और ये जो 7 चक्र हैं, these 7 chakras, they cover most all other chakras। तो अगर ये 7 चक्र पे अगर हम काम करें तो ऑटोमेटिकली ये बाकी सब चक्र इसमें कवर हो जाते हैं। इसीलिए हम रोज तो 100 इतने चक्रस पे नहीं करते हैं, वो अगर आप साधना में जाएंगे और करेंगे तो वो अलग बात है, लेकिन the 7 chakras is what takes care of our energy body। So this kriya, देवी जो क्रिया है, that covers all our 7 chakras through all the breathing phases। तो हर फेज में हमारे सारे चक्र को कवर ये क्रिया को करती है, क्योंकि ये सब जब अगर सब चक्र कवर हो जाते हैं तो मतलब हमारी पूरी एनर्जी बॉडी क्लियर है। और अगर पूरी एनर्जी बॉडी हेल्दी है, क्लियर्ड है, तो ऑटोमेटिकली हमारी फिजिकल बॉडी भी इज गोइंग टू बी इन ऑप्टिमम हेल्थ। ओके, नाउ ये जो 4 मैंने बताए थे लेवल्स, माइंड, बॉडी, सोल एंड हायर सेल्फ। व्हाई इज द माइंड फर्स्ट? बिकॉज जो माइंड है उसकी कॉन्शियसनेस है, उसकी इंटेलिजेंस है, वो सबसे इन चारों भाग में छोटी है। आप मानेंगे नहीं, बहुत लोगों को शायद सरप्राइज लगे, यू माइट बी सरप्राइज दैट द बॉडी, जो हमारा शरीर है, उसकी इंटेलिजेंस, the consciousness and the intelligence of our body is much larger and much vaster than the consciousness and the intelligence of the mind। इसका मतलब कि हमारा जो शरीर है उसकी समझ, उसकी इंटेलिजेंस हमारे मन से भी कई गुना ज्यादा है। क्योंकि आप सोच सकते हैं, how many organs, how many cells, how many functions without even thinking your body is constantly doing। क्या आपको लगता है कि आपका दिमाग आपके पूरे बॉडी को इंस्ट्रक्शन दे रहा है एक साथ मिलके कि ये करो, वो करो, हार्ट को भी बीट करो, लंग्स को भी चलाओ अच्छे से, ये फूड को भी डाइजेस्ट करो?
बाल को भी ग्रो होने दो, हर चीज जो हो रही है, बॉडी की जो इंटेलिजेंस है वो बॉडी कर रहा है। और कितने मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर वर्किंग perfectly according to the rules and the laws of the universe in our body. So the intelligence and the consciousness of the body is massive. Okay? और जो माइंड है, हम क्या है कि माइंड में अटक जाते हैं, इस वजह से मेडिटेशन में प्रॉब्लम होती है, और माइंड में जो चल रहा है उस वजह से बॉडी में इश्यूज आती हैं, और फिर हमारे ग्रोथ में भी इश्यूज आती हैं। तो बेसिकली बॉडी, अगर हम बॉडी का सुने धीरे धीरे, तो हम एक्चुअली सही ट्रैक पे चलेंगे ऑटोमेटिकली। और माइंड को शांत जितना रखे, एज मच एज वी कीप आवर माइंड्स मोर रिलैक्स, मोर क्वाइट, keep our body more conscious and aware, we will already start getting on the right track. Okay? और उसके बाद तीसरा आता है हमारी आत्मा, हमारा सोल। Already the soul is more powerful because it is more permanent. मन तो पूरी तरह बदलता रहता है, राइट? एकदम चंचल है। अभी हम खुशी है, किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो शायद बुरा लग जाए, तो हमारा मूड चेंज हो जाएगा। फिर किसी कुछ अच्छी खबर आ गई तो हम वापस खुश हो जाएंगे, फिर कुछ बुरा हो गया। सो व्हाट हैपेंस, किसी ने हमें बुरा लगा, किसी ने हमें हर्ट किया तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, फिर उन्होंने सॉरी कह दिया, बहुत प्रयत्न किए, तो हम बोलेंगे चलो ठीक है। तो हम चेंज होते रहते हैं ना पूरे टाइम। दैट मीन्स आवर माइंड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, बिकॉज उसकी प्रकृति इस तरह है, इट इज, दैट्स हाउ द माइंड इज। बट एनीथिंग दैट कीप्स चेंजिंग is not permanent, is temporary, right? The body also is changing. हम body भी हम grow हो रही है, हम पहले बच्चे थे, फिर जवान होते हैं, फिर धीरे धीरे हमारी एज बढ़ती है, body is also changing. Okay? लेकिन body is not changing as fast like the mind. इसका मतलब जो mind है उसमें उतना सत्य नहीं है जितने body में है. So the body is more truthful than the mind. अगर हमने किसी के साथ झगड़ा किया तो हमें बुरा लग गया और हमने नहीं बात करनी आपसे, तो माइंड को बुरा लग गया, माइंड ने बोला नहीं चाहिए, फिर माइंड चेंज हो जाएगा आगे जाके थोड़ा। लेकिन अगर बॉडी में वही झगड़े के दरमियान ड्यूरिंग द फाइट, लेट्स से somebody टेक्स अ नाइफ एंड कट्स यू और somebody हिट्स यू, सो बॉडी में अगर जो कट है वो सॉरी बोलने से तो चला नहीं जाएगा ना, थोड़ा टाइम लगेगा उसको ठीक होने में। व्हाई? बिकॉज द बॉडी इज मोर ट्रूथफुल, इट टेक्स, जो है सो है। So basically, many a times listening to the body helps. If the body is telling you, I'm tired, take rest, you must rest. If you basically listen to the mind saying, no, no, I can do it, I can do it. Yes, maybe you can do it, but it will catch up. ठीक है? तो body का सुनने से आप हमेशा सही ट्रैक पे रहेंगे, because the body has its intelligence. So we must respect, we must love our body. जो सोल है दैट इज इवन मोर लार्जर, क्योंकि वो तो हर जन्म के बाद भी नहीं चेंज होता, वही सोल वापस आते रहता है, राइट? सो द सोल इज ऑल्सो ट्रूथफुल, इट्स इवन मोर ट्रूथफुल। बॉडी तो एक बार खत्म भी हो जाएगा, राइट? सोल तो फिर वापस इनकारनेट होता रहता है, होता रहता है। दैट मीन द सोल इज इवन मोर पावरफुल, एंड when we go to the soul level, right, we can make changes, we can make shifts. तो जो पैटर्न्स हैं, जो हम कहते हैं ना, हमें अपने आप को बदलना है, हमें अपने पैटर्न्स बदलने हैं, हमारी हैबिट्स बदलनी है, माइंड विल हेल्प यू, बॉडी विल हेल्प यू। लेकिन अगर हम मेडिटेशन करते हैं, इफ वी मेडिटेट and go to the higher level, then the change we can bring is from a higher level, a deeper level. Okay? And then the fourth stage, the fourth highest higher self, हमारा जो प्रकाशित स्वरूप है, वो हमारा भगवान का स्वरूप है। तो हम पूरी तरह से जब कनेक्ट हो जाते हैं, राइट, with the intention of that higher self, then we can actually feel the energy of what it feels like to be divine. हम अपने खुद की दिव्यता का एहसास महसूस कर सकते हैं, पूरी तरह से खाली, एम्प्टी, शून्य होकर एक एनर्जी के स्वरूप में अपने प्रकाशित स्वरूप से मिलकर। तो वो आप जितना रोज मेडिटेशन करेंगे, जितना हम ये क्रिया करेंगे, तो धीरे 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 आपका एहसास, आपका कनेक्शन, वो जो फीलिंग है वो बढ़ती जाएगी, क्लियर होती जाएगी और स्ट्रॉन्गर होती जाएगी। ठीक है? तो इसका आप ये कभी मत सोचिए कि मुझसे नहीं हो रहा। Everyone's feeling it, everyone's doing it. It will become stronger, clearer, and more. You start feeling the connection more every day when you keep doing it.
So the key is to understand that there is no exception. Everybody is capable and everybody can and will do it if they want to. Okay. So these are the 4 consciousness levels. Now, let me talk about the mind. ठीक है? अभी तक किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं? अभी तक मैंने जो समझाया आप सबको समझ में आ गया? Thumbs up? Yeah? Oh, wow. That's very impressive. That's great. Thank you so much for being such good students and such good listeners. ये सब जो concepts हैं थोड़े easy है, लेकिन समझना जरूरी है. Excellent. Thank you for your feedback. That's very sweet. Okay. अब मैं अपने मन के बारे में बताती हूँ. ठीक है, तो हमने ये 4 बता लिया, लेकिन हमारा जो मन है, जो सब प्रॉब्लम्स हमारे मन से शुरू होते हैं, राइट, सब माइंड में है. माइंड बहुत जरूरी है, क्योंकि जो माइंड है वो हमें घुमाता रहता है, और जो हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है वो एक्चुअली हमारे माइंड की वजह से हो रहा है. और जो माइंड है वो एक्चुअली, जैसे मैंने समझाया, सबसे छोटा है, लेकिन सबसे शरारती, सबसे डिफिकल्ट, सबसे कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग होने वाला तो माइंड ही है. द माइंड इज व्हाट कीप्स मूविंग एंड व्हाट इज द मिस्चिफ मेकर, द मंकी माइंड, राइट? सो द माइंड हैज 2 पार्ट्स. ठीक है, वन इज थॉट्स, मतलब विचार, एंड इमोशंस. ठीक है, इमोशंस जो भावनाएं हैं. तो भावनाएं हैं, कोई लोग ना बहुत फीलिंग्स रहती हैं, बहुत इमोशंस रहते हैं, राइट? कोई लोग बहुत सोचते रहते हैं पूरे टाइम, दिमाग चलता रहता है उनका, लेकिन ये सब मन से ही है. भावनाएं भी मन से है. आप ये मत सोचिए कि भावनाएं जो है हमारे आत्मा से आ रही है. भावनाएं और विचार सब हमारे मन से है, और ये दोनों मिलके जब हमारे खुद के बारे में हम सोचते रहते हैं तो बन जाता है ईगो, राइट? ईगो is a combination of thoughts and emotions which are all about ourselves. Okay, and ego is what separates us from our true self. तो जो हमारा माइंड है, राइट, तो हमें माइंड कहता है कि हम अलग हैं, बाकी सबसे अलग हैं. ठीक है, वैसे देखा जाए तो हम सब एक ही हैं, हम जुड़े हुए हैं एनर्जी से, राइट? जैसे कि ये मेरा शरीर है, तो मैं रीनी हूं, मैं आपके सामने बैठी हूं, ये मेरा शरीर है. तो मेरे शरीर के हर अलग अलग भाग में अंदर मेरा हार्ट है, मेरे लंग्स है, हाथ है, उंगलियां हैं, नेल्स हैं, बाल हैं. तो ये हर ऑर्गन, हर चीज अलग है, लेकिन है तो मेरा ही हिस्सा ना. मैं ही हूं ना. ये हार्ट भी मेरा है, ये हाथ भी मेरा है, ये लिप्स भी मेरे हैं. तो ये सब एक ही है, एक ही व्यक्ति का है ना, ये सब जो अंदर अलग अलग है. उसी प्रकार से हम सब एक ही एनर्जी, एक ही सोर्स से बने हुए हैं, राइट? तो अगर हम ये पूरे यूनिवर्स को, ये पूरे ह्यूमन काइंड को, पूरी कॉन्शियसनेस, ह्यूमन कॉन्शियसनेस को एक शरीर माने, तो हम सब अलग अलग ऑर्गन्स हैं, राइट? तो अगर हम चाहें तो अपने आप को अलग समझ सकते हैं, लेकिन हम चाहें तो ये भी समझ सकते हैं कि भाई हम एक ही तो कॉन्शियसनेस के हैं, राइट? और कभी कभार हमारे ऑर्गन्स आर maybe somebody's heart is weak, somebody's kidney is weak, somebody's missing some organ, some part, some finger, somebody has less hair, somebody has skin issues, whatever it is. The point is, it's all, yes, Navnita says oneness, very true, it's oneness. So that feeling of oneness, जो एकता है हम सब में, वो है because we are all made from that same fiber, from that same energy. ठीक है, तो आखिर में जब हम पूरी तरह से शून्य हो जाते हैं मेडिटेशन में जाके, और एकदम खत्म हो जाते हैं, तो हमारा मन शांत हो जाता है, ईगो चला जाता है, क्योंकि मन गया तो ईगो गया. ईगो मन से आता है, हमारे शरीर से ईगो नहीं आता है. ईगो डज नॉट कम फ्रॉम द माइंड, इट डज नॉट कम फ्रॉम, yes, unity consciousness, Chirag says. Very good. So when the mind becomes empty and silent, then the ego is gone, then we are not separate, then we all are energy, and then we all are one. और हमारा पूरी तरह से 100% जो प्रकाशित स्वरूप है, हर हायर सेल्फ, सबका 100% है. तो आपका 100% मेरे 100% से ज्यादा नहीं है, और मेरा 100% आपके 100% से भी ज्यादा नहीं है. यू अंडरस्टैंड? आर हायर सेल्फ, हमारा जो पूरी तरह से 100% जो प्रकाशित स्वरूप है, वो सबका एक जितना ही है. इसका मतलब हम सब
हम सबका अल्टीमेट पोटेंशियल तो सामान्य ही है, तो अभी हम जहां पर भी है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम एक आखिर में तो सब एक जितने ही पावरफुल हैं। और ये समझने से हम पूरी गेम चेंज कर सकते हैं, अपनी पूरी जिंदगी, अपनी सोच, हम जो कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे अगर किसी डिफीट या फेलियर हो गया तो उसको कैसे बदल सकते हैं ऐसे चुटकी में। क्योंकि हमें सबको पता है कि अगर मैंने किया किसी और ने नहीं किया तो वो भी कर सकता है। सीधी बात है, जो मन है उसे सिखाना है कि भैया शांत हो जाओ, ज्यादा मत इधर उधर हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके, सो द माइंड हैज थॉट्स, हैज इमोशंस एंड ईगो। नाउ ऑल ऑफ दिस, ये हमारे नीचे के जो चक्र हैं, पहले दूसरे और तीसरे, इसमें हमारी जो नीचे हमारा माइंड है वो पहले दूसरे तीसरे 3 चक्र में ही घूमता रहता है। ओके, अब मैं थोड़े चक्र के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन ये माइंड में समझ गए ना कि ये हो गया थॉट्स, इमोशंस, ईगो। अच्छा, अब आई वांट टू आस्क यू अ ट्रिक क्वेश्चन। तो ये फीलिंग्स हो गई हमारे माइंड से आ रही है, तो सोल फीलिंग्स क्या होगा आपके हिसाब से? व्हाट इज सोल फीलिंग्स? Anybody wants to type and try and give an answer? Oneness, blissful, love, happy, love and okay, देखिए, जो सोल फीलिंग्स हैं वो बहुत अलग अलग टाइप की रहती हैं। जॉय, लव, यू नो, करेज, स्ट्रेंथ, कंपैशन, ग्रैटिट्यूड, ये सारी सोल फीलिंग्स है। लेकिन सोल फीलिंग कहाँ से आ रही है? जो ये इमोशंस है, थॉट्स है, ईगो है, ये सब तो हमारे मन से आ रहा है, माइंड से आ रहा है, राइट? इट्स कमिंग फ्रॉम द माइंड। सो वेयर आर द सोल फीलिंग्स कमिंग फ्रॉम? ये सोल फीलिंग्स हमारे मन से आ रही, हायर सेल्फ, फैंटास्टिक दीपा, यस दैट्स द आंसर। तो हमारे जो सोल, जैसे जैसे जो ये शब्द है सोल फीलिंग, राइट? तो हमारे सोल और हमारे हायर सेल्फ, जो हमारा प्रकाशित स्वरूप है, जो चौथा स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, वहां से जो फीलिंग्स आ रही है ना, वो है सोल फीलिंग्स। ओके, तो ये जो किताब है द 1000 सीड्स ऑफ जॉय, अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो इसमें भी समझाया हुआ है सोल फीलिंग्स बहुत ही अच्छे से, सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ के वर्ड्स में, इन द चैनलिंग अबाउट व्हाट आर सोल फीलिंग्स। So soul feelings are coming from your higher self, from your soul consciousness. Okay, तो लव, कंपैशन, ग्रैटिट्यूड, फ्रीडम, ऑल दीज अलग अलग जो है, अबंडेंस, क्रिएटिविटी, ये सारी सोल फीलिंग्स है। और जैसे कि मैंने कहा, जो मन से आता है वो बदलता रहता है। हैप्पी, हैप्पी इज नॉट अ सोल फीलिंग बट इट इज अ फीलिंग, यू आर राइट। सो जॉय, जॉय इज अ सोल फीलिंग, ठीक है? सो बेसिकली जो मन से आएगा वो परमानेंट रहेगा आपके हिसाब से, कि वो टेम्पररी रहेगा? जो आपका माइंड जनरेट कर रहा है, वट एवर कमिंग फ्रॉम योर माइंड, डू यू थिंक इट विल बी टेम्पररी और परमानेंट? टेम्पररी, वेरी गुड, यस। आपके मन से जो भी आ रहा है वो तो टेम्पररी है, क्योंकि मन तो पूरे टाइम बदलता रहता है। इसका मतलब ये जो सोल फीलिंग्स आपके मन से नहीं आ रही है, आपके आत्मा से आ रही है, आपकी परमात्मा का जो प्रकाशित स्वरूप है, आपकी हायर सेल्फ से आ रही है। ओके, सो जो हायर सेल्फ से आता है वो टेम्पररी होगा कि परमानेंट रहेगा? Very good, permanent, yes. Everything coming from your soul consciousness, from your higher self, from your godly self is permanent. इसका मतलब कि जो फीलिंग्स तो हमेशा ही आ रही हैं और बह रही हैं, लेकिन आपको महसूस हो रही है कि नहीं, ये इससे आपको समझ में आएगा कि आप उसको फील कर पा रहे हैं कि नहीं। What does that mean? What it means is soul feelings are always flowing and they are always there. If your mind is quiet, अगर आपका मन शांत है, आपका मन इधर उधर नहीं उचक रहा है, आपको गोल गोल नहीं घुमा रहा है, आपको इमोशंस में और विचार में नहीं डुबा रहा है, और आपका मन एकदम शांत है, तो आप उस सोल फीलिंग के फ्लो को, के प्रभाव को, you'll be able to feel that flow of soul feelings all the time. If your mind is always well behaved and quiet and doing its job and not working overtime, हमारा दिमाग जैसे ज्यादा चलने लगता है और ज्यादा सोचता है, तब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो अब क्या होता है, हमारी जो आत्मा से कनेक्शन है, राइट, अंतःकरण की शुद्धि, सोनिया जी से, यस, वेरी गुड। सो बेसिकली ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ इट। तो हमारा मन बेसिकली बहुत जरूरी है कि शांत रहे,
अपना जितना काम है उतना ही करे, ज्यादा ना सोचे, ज्यादा ना इमोट करे, और हमें इधर उधर ना बहकाए, ताकि हमारा शरीर भी फिट रहे, हमारी आत्मा से हमारा कनेक्शन जुड़ा रहे, और जो सोल फीलिंग्स है जो कितनी पावरफुल है, वो उसका जो प्रभाव, उसका जो फ्लो है, वो हम उसे हमेशा अच्छे से महसूस करते रहें. ओके, सो यू विल ऑलवेज बी जॉयफुल नो मैटर व्हाट हैपेंस. ओके, एंड जो सोल फीलिंग्स होती है उसमें ज्यादा इमोशन नहीं रहता, लेकिन उसमें ठहराव रहता है. ठीक है, जैसे कि मैं आपको अंतर बताती हूँ. आई टेल यू द डिफरेंस बिटवीन इमोशन एंड सोल फीलिंग. अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपको तुरंत में समझ में आएगा कि सोल फीलिंग्स क्या है और इमोशन क्या है. समटाइम्स somebody's auric field is, yes, there are all kinds of issues. So love, ठीक है, लव मतलब प्रेम. प्रेम है एक आत्मा से आता है. ओके, सोल फीलिंग है. जो मन से आता है वो लव, वो प्रेम प्रेम नहीं है. वो हो सकता है बेसिकली उसमें मन मन का डाइल्यूशन आ जाता है, तो वो चेंज होता रहता है. जो प्रेम होता है वो अनकंडीशनल रहता है, अनकंडीशनल लव, जो जो इधर उधर शिफ्ट ना हो. जो मन से आता है वो अट्रैक्शन होता है, अटैचमेंट होता है, आपको पसंद पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए वो प्रेम रहेगा ही. जो अमर प्रेम है, अनकंडीशनल लव, जैसे कि माँ का प्रेम, उसका अच्छा एक उदाहरण है. क्लोज टू सोल फीलिंग इज अनकंडीशनल लव इज मदर्स लव. चाहे कोई आतंकवादी भी अगर हो, कोई टेररिस्ट भी हो, तो उसकी माँ भी उसे प्यार करेगी चाहे वो कुछ भी करे. भले ही हमें अपने बच्चों पे गुस्सा आए, हमें अपने बच्चों पे शायद कभी शर्मिंदगी भी हो. वी माइट बी ashamed sometimes of the child's behavior. We might get angry with the children. We might get frustrated sometimes. But those are emotions. But the love is there over and above whatever you are feeling. That is unconditional love, right? सो लव के साथ इमोशंस, ऐसा जरूरी तो नहीं है. सोल फीलिंग्स हमेशा रहती है, इमोशंस भी आते जाते रहते हैं. तो जितना इमोशंस आते जाते रहे, वो कंट्रोल में रहे, तो आपका सोल फीलिंग्स हमेशा ज्यादा पावरफुल रहेंगी और आप उसको फील कर पाएंगे. राइट? और क्या होता है, ये जब सोल फीलिंग्स मन में जाती हैं तो वो डिवाइन फीलिंग से वुंडेड हो जाती है. मतलब डिवाइन मतलब पूरी तरह से परफेक्ट, और वुंडेड मतलब घायल. तो जो प्रेम है मन से जाएगा तो उसमें इनसिक्योरिटी आ जाएगी, उसमें पोजेसिवनेस आ जाएगी, उसमें डोमिनेंस आ जाएगी कि भाई मुझे ही प्रेम करे और किसी को नहीं. अच्छा, मुझे ही देखे, मुझे ही ऐसा करे. पोजेसिवनेस, इनसिक्योरिटी, डोमिनेंस, ये सब प्रेम का ही स्वरूप है. लेकिन ये हमारे दिमाग, मन में, इसमें सब इमोशंस और थॉट भर के वो चेंज हो जाता है. ऑलराइट, सो these are basically the main difference. So देवी क्रिया में हम हर फेज में, हर स्टेज में अपने हायर सेल्फ, जो हमारा प्रकाशित स्वरूप है, we will connect with our higher self in every phase and connect and allow the flow of soul feelings, the flow of our own light, एंड वर्क ऑन ऑल आवर चक्र. तो हम अपने चक्र पे काम करेंगे, अपनी एनर्जी पे काम करेंगे, अपने सांसों द्वारा, और ये जो सोल फीलिंग्स है उसे बहने देंगे. और जब अपना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने मन को शांत कर लेंगे ताकि हम एकदम डीप ध्यान में जा पाए, सब चीज जो सोल फीलिंग है उससे एक्सपीरियंस कर पाए, और धीरे 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 एकदम शून्यता में, एम्प्टीनेस में चले जाए, जहां पर हमें अलग अलग ब्यूटीफुल डिवाइन दिव्य एक्सपीरियंसेस हो, और हमारा जो मेडिटेशन हो बहुत ही डीप हो. और अब देवी क्रिया अगर आप रोज करते हैं, जो करना ही चाहिए, ये 3 दिन सीखने के बाद आप 40 दिन रोज करिए, उसके बाद आपकी हैबिट बन जाएगी. और ये देवी क्रिया करने के बाद आप चाहें तो ध्यान में बैठ सकते हैं. तो इट इज अ बेस्ट exercise to make your mind quiet and to get into deep meditation. Okay, so Devi Kriya is excellent for people who want to do meditation also. अनापनस्ती कर सकते हैं, जो भी चाहे आप कर सकते हैं देवी क्रिया के बाद. हम रोज करते हैं. वेरी नाइस, रेखा जी सिंह, ब्यूटिफुल. Yes, I know that we've done other workshops, और आनंदा जी ने मुझे बताया था कि
you know, there are groups which are practicing every day. They wake up at 3 in the morning, 3 बजे सुबह उठ के ग्रुप में I think 100-150 लेडीज देवी क्रिया करने लगी है. I was so happy to hear that. ये वाकई में बहुत ही पावरफुल क्रिया है, और इसमें आप जितना करेंगे उतने आपके एक्सपीरियंस पर्सनल होते रहेंगे. ठीक है, तो अभी लेट मी आस्क, और किसी को कुछ क्वेश्चंस है, कुछ पूछना चाहेंगे? Does anyone have any doubts, any questions? You can type. All good? Yes, I will tell you that. Can you please give more examples of soul feelings versus emotions? Okay, that's a relevant question. Okay, I'll give you 1 or 2 more examples of soul feelings versus emotions. So basically, अगर हमें let's say joy is आनंद, right? आनंद जो है वो एक्साइटमेंट जो है, एक्साइटमेंट यानी जो उत्सुकता, वो इमोशन है, राइट? हम पूरे टाइम तो उत्सुक नहीं रह सकते ना, तब तो थक ही जाएंगे अगर इतने एक्साइटमेंट रहेगी तो. लेकिन जो आनंद है, वो भाव, आनंद भाव है, वो जो भावना है, वो सोल फीलिंग है, वो हमेशा रह सकती है. हम वो जो कविता जी, या सो बेसिकली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जो मन से आता है वो टेम्पररी रहता है, वो हम पूरे टाइम उसे नहीं कर पाएंगे. तो अगर आपको उत्सुकता भी है, एक्साइटमेंट भी है, तो वो मन से आ रही है क्योंकि अभी कुछ अच्छा, आपको अच्छी न्यूज आई या अच्छे मार्क्स आए या आपको लॉटरी लग गई या जो भी है, तो आप एकदम खुश हो गए. लेकिन क्या आप वो भावना को यानी कि घंटों तक रह सकते हैं क्या उस मूड में, या पूरी जिंदगी भर आप उसी स्टेट में रहेंगे क्या? नहीं ना. तो वो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है. तो आपके मन से आ रहा है वो इमोशन है. लेकिन जो आनंद भाव है, वो आनंद जो है वो उसमें ठहराव है, उसमें फेथ है, फेथ, राइट? कि सब कुछ ठीक है, चाहे कुछ भी हो रहा है, वो आपका जो कोर है वो पूरी तरह से प्रकाशित. सो द जॉय, दैट पीस, दैट जॉय, दैट लव, द कंपैशन, द ग्रैटिट्यूड, द फेथ, ये सब सोल फीलिंग्स है. लाइक फेथ और ट्रस्ट, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है. तो जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट मतलब हिंदी में क्या कहेंगे ट्रस्ट को? विश्वास, राइट? विश्वास. तो हम कोई हमारा, या सॉरी, विश्वास इज फेथ आई थिंक, एंड ट्रस्ट इज भरोसा, राइट? हम किसी पे भरोसा करते हैं तो हमारा कोई भरोसा, यस करेक्ट खुशी जी, थैंक यू. भरोसा मतलब ट्रस्ट. तो हमारा कोई ट्रस्ट तोड़ भी सकता है ना, हमारा भरोसा तो कोई चेंज भी कर सकता है, राइट? लेकिन जो विश्वास है मतलब फेथ, जो विश्वास है वो भगवान पे विश्वास है, या जो फेथ है वो अटल है, जो शिफ्ट नहीं होता है. ठीक है, तो फेथ मतलब हर चीज में फेथ होता है. लाइक अभी अगर 4 बजा है तो 1 मिनट बाद 4:01 होगा, तो क्या हमें इतना भरोसा करने की जरूरत है कि होगा कि नहीं होगा? हमें पता है कि होगा, राइट? अगर अभी दिन है तो आगे जाके रात हो जाएगी, तो हमें ये पता है. तो क्यों हमें ये विश्वास है कि ऐसा ही होगा, राइट? दैट फेथ इज देयर. अगर हम अपने घर से बाहर गए हैं तो हमें मालूम है हमारा घर जहां पे था वहीं पे रहेगा, हमको इतना तो विश्वास है, फेथ है, राइट? लेकिन जो भरोसा है क्या, कि हमने इसको ये बेच दिया है लेकिन उसने पैसे अभी तक दिए नहीं, देगा कि नहीं देगा क्या पता. अब वो भरोसा है, राइट? सो दैट समबडी दैट कैन चेंज. अगर हम पे किसी पे भरोसा है लेकिन उसने कुछ गलत किया तो वो भरोसा हट जाएगा, राइट? सो द ट्रस्ट कैन चेंज, इट्स फ्रॉम द माइंड, बट द फेथ stays, it's from the soul. So soul feelings are very important, very powerful, they don't change. Emotions and thoughts keep changing, okay? So that you will read the book and in your meditation you will understand. Let's not complicate it too much. Abhi 5 bajne mein 2 minute hai. Any other questions? I want to now talk about ये जो ग्रुप है, I'm sure the Devi Circle team might be okay to share all of with you guys the groups which are doing together. लेकिन अभी ये 3 दिन में मैं चाहती हूँ कि आप सब इस क्रिया को अच्छे से समझें, इसके कॉन्सेप्ट समझें, इसके स्टेप समझें. हम साथ में करेंगे तो एक्सपीरियंस भी हमें होगा, और फिर अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकेंगे. हमारे पास इनफ टाइम है, 3 दिन है, आज पहला दिन है, अब पहला 1 घंटा खत्म हुआ है. तो मैं चाहती हूँ आप इतने अच्छे सब रिस्पेक्टफुल एंड फोकस्ड, अमेजिंग, ओपन माइंडेड स्टूडेंट्स आए हैं सब. ठीक है,
तो हम आगे बढ़ते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द चक्र. सो बाय द वे, ये है बुक थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय. अगर जिन लोगों ने नहीं देखी है या अगर आप लेना चाहें तो ये Amazon में भी मिलती है. यू कैन ट्राई एंड ऑर्डर दैट. ये इंग्लिश है. आई थिंक दिस बुक इज बीइंग ट्रांसलेटेड in different oh, thank you. This book is being translated in other languages as well. So, that's so that everybody can understand it. चलिए, तो अब हम अपने जो चक्रस हैं, जो 7 चक्रस जो मैंने कहा, उसके बारे में कुछ सीखते हैं. और ये जो चक्र का इंफॉर्मेशन है, बुक नेम ऑफ बुक प्लीज, 1000 सीड्स ऑफ जॉय. ठीक है, बाय अनंदा करुणेश जी. ये है बुक. ये आपके जो आप ग्रुप में है उसमें शेयर हो जाएगा, सो डोंट वरी, इट विल बी मेंशन्ड. एंड yeah, so let's move on with the understanding of our chakras. So जो हमारे चक्र है, 7 चक्र, it is on our back. हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, उस पे, उस लाइन पे हमारे जो सारे चक्र हैं, 7 चक्र, वो सिचुएटेड है. So yes, this recording I believe it will be shared. The Devi Circle team आप सबके साथ ये recording share करेगी, at least शुरू में, और फिर I think you'll understand all the concepts and you'll be a part of the group. So let's focus on the concepts, and then if you have any questions we'll answer that later, okay, so that we don't break our flow. So जो पहला चक्र है, वो सबसे हमारे रीढ़ के हड्डी के नीचे का जो भाग है, all the way at the bottom of your spine, is your first chakra. And what is the name of the first chakra? रूट चक्र, और संस्कृत में मूलाधार चक्र. ठीक है, इट्स रेड इन कलर. एग्जैक्टली. देन सेकंड चक्र नंबर 2 इज स्वाधिष्ठान चक्र और सेक्रल चक्र. तो दिस इज थोड़ा ऊपर, यानी हमारा जो नाभि है, नेवल एरिया, उसके नीचे का भाग जो है, दिस इज आवर सेकंड चक्र, राइट. लेट मी टेल यू लिटिल बिट अबाउट ईच चक्र, तो हम थोड़ा थोड़ा समझ भी लेंगे. तो जो पहला चक्र है, रूट चक्र या मूलाधार चक्र, हमारे सारे जो चक्रस हैं वो अलग अलग इस सृष्टि, यूनिवर्स के तत्व, एलिमेंट्स से जुड़े हुए हैं, राइट. सो द रूट चक्र इज कनेक्टेड टू द एलिमेंट ऑफ अर्थ. जो पृथ्वी है उसका तत्व, पृथ्वी तत्व हमारे मूलाधार चक्र या रूट चक्र से कनेक्टेड है, अर्थ. ठीक है, तो हमारे जो भी अर्थली इंस्टिंक्ट्स हैं, अर्थली इंस्टिंक्ट्स मतलब हम मनुष्य हैं, राइट. तो हमारे जो भी डर या जो भी जजमेंट या जो भी कंडीशनिंग है, ऑल दैट इज स्टोर्ड इन आवर अर्थली इंस्टिंक्ट, इन आवर रूट चक्र. तो हमारे मूलाधार चक्र में जो भी भय है, फियर है, जो भी जजमेंट्स हैं, जो भी हमारे सोचने के तरीके हैं, वो सब हमारे मूलाधार चक्र में. ठीक है, और जो मूलाधार चक्र है वो लक्ष्मी जी से कनेक्टेड है, राइट. तो लक्ष्मी जी हमारे मूलाधार अर्थ एलिमेंट, मूलाधार चक्र को देखती है. इस वजह से अबंडेंस, समृद्धि, जो हम लक्ष्मी जी से रिलेट करते हैं, we connect and we relate to goddess Lakshmi with abundance, right. That is also connected to the earth, that is also connected to the root chakra, हमारा मूलाधार चक्र. ठीक है, सो आर आइडियाज ऑफ अबंडेंस, हमारी जो सोच विचार, अबंडेंस, समृद्धि के जो विचार हैं, वो सब हमारे मूलाधार में जुड़े हुए हैं. तो हमारा अगर हम अपने आप को ज्यादा समृद्धि पाना चाहते हैं, अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे पैसों की हो, चाहे जायदाद हो, चाहे हर चीज की समृद्धि, विचारों की, क्रिएटिविटी की, हर चीज की, हेल्थ की, तो अबंडेंस जो है वो सोल फीलिंग है, और वो हमारे अर्थली रूट में कनेक्टेड है, लक्ष्मी जी की एनर्जी से कनेक्टेड है. तो हम अपने रूट पे काम करने से वो सब शिफ्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. ठीक है, दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र, जो कि सेक्रल चक्र कहते हैं इंग्लिश में. इट्स बिलो योर नेवल, हमारे नाभि के नीचे का भाग. यस, ऑलरेडी आई गॉट द आंसर, वाटर. सो द एलिमेंट, जो तत्व हमारे दूसरे चक्र से कनेक्टेड है, वो है
जल, पानी या वाटर, ठीक है। अब पानी हमेशा बहता रहता है, वाटर इज ऑलवेज मूविंग, राइट, इट्स फ्लूइड, इट्स नॉट स्टैग्नेंट, इट डजंट स्टे। अर्थ इज डजंट मूव, इट्स सॉलिड, बट वाटर इज अ लिक्विड, सो इट कीप्स flowing, it keeps shifting. So what is it that we talked about? हमने आज अभी इस पहले घंटे में किस चीज के बारे में बात किया कि पूरे टाइम चंचल है, पूरे टाइम हिलता रहता है, हर टाइम बदलते रहते हैं? हमने किस चीज के बारे में ऐसा कहा था कि मन? वेरी गुड, माइंड। और माइंड में क्या है? माइंड में क्या हमने बात समझा कि मन में क्या क्या है? थॉट्स, विचार, वेरी गुड, और इमोशंस, वेरी गुड, ईगो, एक्सीलेंट। ओके, सो जो हमारे अब मन में भी दो हमने भाग किए थे, राइट राइट, एक तो विचार और दूसरे इमोशंस। तो जो इमोशंस है ना, वो पानी की तरह पूरे टाइम बहते रहते हैं, इधर तो उधर, एकदम स्थिर नहीं रहते। तो वो हमारे जो इमोशंस है वो हमारे दूसरे चक्र, स्वादिष्टान चक्र, सेक्रल चक्र से कनेक्टेड है। सो आवर सेक्रल चक्र हार्बर्स ऑल द इमोशंस, ठीक है। तो हमारा जो स्वादिष्टान चक्र अगर बैलेंस्ड है, एकदम शांत है, एकदम अलाइंड है, हार्मनी में है, एक्टिवेटेड अच्छी तरह से है, तो हमारे इमोशंस काबू में रहेंगे, हम एकदम अच्छे से इधर उधर नहीं, वी वोंट बी इमोशनली वॉलेटाइल और हाई स्ट्रॉन्ग। ओके, जैसे इंग्लिश में कहते हैं हाई स्ट्रॉन्ग, इमोशनली वॉलेटाइल, वो नहीं होगा। हम इक्वानिमस बन जाते हैं। इक्वानिमस को कैसे कहेंगे हिंदी में? जैसे कि एक एक भाव, जैसे कि ना तो ज्यादा पूरे टाइम एकदम इतने खुश के ओ बापरे, या इतने दुखी के एकदम रो रो के थक नहीं रहे हैं। समता, वेरी गुड, यस, दैट्स अ गुड वन, यस, गुड गुड वर्ड, थैंक यू। सो बेसिकली ये समतावम, यस, सहज, यस, दीज आर ऑल द राइट वर्ड्स, करेक्ट, ठीक है। इक्वानिमस, तो हमारे जो भावनाएं हैं वो स्थिर रहे, वो एकदम ना तो उछले ज्यादा या ना तो नीचे, ठीक है। जैसे कि बुद्ध भगवान कहते थे, मध्य में रहो, राइट, मध्य में रहो, इतना मत खुश हो कि फिर जितने हाई हाई रहते हैं तो उतने लोज भी लो हो जाते हैं, राइट। तो आप जितना मीडियम, बीच में बैलेंस, वेरी गुड, यस। सो बेसिकली दैट इज योर सेकंड चक्र, ठीक है। तो कलर्स हमने भी बात किए थे, तो पहला चक्र हमेशा लाल, रेड कलर है, रूट चक्र, ठीक है। सेकंड चक्र ऑरेंज होता है, वाटर एलिमेंट का, जल तत्व, इमोशंस, भावनाओं में रूटेड, सेकंड चक्र ऑरेंज कलर, एग्जैक्टली। नाउ थर्ड चक्र, तो थर्ड चक्र कौन सा हो गया हमारा? सोलर प्लेक्सस, यस। और संस्कृत में उसका नाम है मणिपुर चक्र, वेरी गुड। सो थर्ड चक्र इज सोलर प्लेक्सस इन इंग्लिश, मणिपुर इन हिंदी। और ये हमारे नाभि, हमारा नेवल के ऊपर का भाग है। तो जो पेट में दो चक्र है, नाभि के नीचे स्वादिष्टान चक्र, नाभि के ऊपर मणिपुर चक्र, राइट। सो बिलो द नेवल is sacral, and above the navel is solar plexus. Okay, now what color will be solar plexus? Yellow, very good, Monica, excellent. So yellow color. अच्छा, अभी इसमें कौन सा तत्व है? तो जो मूलाधार, root was earth, then swadhisthana was water. Yes, see, now this is the trick question. हम सब फायर कह रहे हैं और आप गलत नहीं है, लेकिन ये जो बुक है इसमें जो लक्ष्मी जी और सरस्वती जी ने शेयर किया है, जो अग्नि तत्व है, फायर तत्व है, जो हमने हमेशा सीखा है, ये इस किताब में लक्ष्मी जी और सरस्वती जी ने चैनल करके थोड़ा हमें अलग दिखाया है कि जो अग्नि तत्व है और जो ईथर है, राइट, वो सब चक्र में होता है, लेकिन ये तीसरा वाला एयर है, मतलब वायु, हवा। क्यों पता है? जैसे कि पृथ्वी हो गई, फिर पानी उसके ऊपर हो गया, फिर उसके ऊपर हवा ना, एटमॉस्फेयर। सो द स्काई इज अबव द अर्थ, सो अर्थ, वाटर एंड देन द एयर, द एटमॉस्फेयर। तो हमारा जो शरीर भी है, हमारे जो चक्र भी है, वो सृष्टि की तरह है। हम जो ऐसे देखा जाए तो हम ये ना सृष्टि, यानी कि यूनिवर्स के जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, वो हम भी उस हम में भी वही है। तो हम देखा जाए तो नीचे तो पृथ्वी ही है, राइट, पृथ्वी के ऊपर पानी है, राइट, पानी के ऊपर पृथ्वी नहीं है, राइट। और फिर पानी के ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर है ना, हवा है, वायु है, आकाश है, राइट। तो ये
तीसरा जो चक्र है उसमें वायु, एयर एलिमेंट है, एयर तत्व, ओके। और ये जो तत्व है इसमें कौन से मन का भाग कौन सा है? एयर। यस, वेरी गुड रीना जी। तो इमोशंस हो गए। अब हवा में क्या उड़ता रहता है? हमारे विचार पूरे टाइम उड़ते रहते हैं इधर उधर। हम अपने कहते हैं ना ख्याली पुलाव, बैठे बैठे सोच रहे हैं हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। मैं ऐसा होगा 10 साल बाद मैं ये कर सकता हूँ, पहले पीछे भी कभी कुछ बुरा भी हुआ, खत्म हो गया, फिर भी हम सोचते हैं उसके बारे में तो बेसिकली ये हमारा मन है ना, हमारे विचार है जो हमें कहाँ कहाँ ले जाते हैं, पीछे भी ले जाते हैं, आगे भी ले जाते हैं, उड़ते रहते हैं हवा की तरह, राइट। सो हमारे जो विचार है और ईगो मतलब अहंकार, ये भी इसमें एयर का एलिमेंट है, ओके। इसमें वायु, इसमें हवा का तत्व है। तो कहते हैं ना हवा में उड़ रहे हैं ये बेसिकली। So that is basically the air element. Okay, so this is the difference in the third chakra, which was shared in this book. ये किताब की जो इंफॉर्मेशन दिया गया है इसमें ये समझाया है कि तीसरे चक्र में वायु एयर एलिमेंट है। अच्छा, अभी अग्नि या फायर एलिमेंट है, लेकिन ये सब चक्रों में है फायर, क्योंकि जो नीचे जो है वो क्रिएटिव फायर है, ठीक है। हमें हर चीज में फायर चाहिए, कुछ क्रिएट करने के लिए भी फायर, पकाने के लिए फायर चाहिए, हर चीज के लिए फायर चाहिए ना, गाड़ी चलाने के लिए भी फ्यूल चाहिए, हर चीज में फायर चाहिए। जो बीच का जो चक्र है उसमें फायर किस चीज चाहिए? सस्टेन करने के लिए। तो क्रिएट करने की अलग फायर है, जो ब्रह्मा ब्रह्मा की फायर क्रिएटिव फायर, विष्णु जो सस्टेन करते हैं उसकी सस्टेनेबल फायर, और डिस्ट्रक्शन जो ऊपर के चक्र है उसमें जो फायर होती है वो हमें जो हमारे digestion is there exactly in the center, but what is taught is that it's not only about your body कि डाइजेशन पेट की तरफ है तो इसलिए इस चक्र को अग्नि मानेंगे, ऐसा मान के हम चलते आए हैं। लेकिन ये फर्क है कि इस अग्नि हर चक्र में है, और अग्नि का जो यूज है, जो उसका महत्व है, द purpose of the fire in different chakras is different. So the fire in your upper chakras helps you to destroy, destruction. What? Destruction of ego, destruction of duality, destruction of all the things which are low. ठीक है? So that is a very important element, an important point. फिर आता है चौथा हमारा हार्ट चक्र, अनाहत चक्र। अब हार्ट चक्र जब खुलता है, जब ओपन होता है, जब एक्टिवेट होता है, कब होता है? जब हमारे नीचे के 3 चक्र अच्छी तरह से एक्टिवेट होके जब खुलते हैं तो ऑटोमेटिकली हार्ट चक्र खुलता है, ठीक है। अगर आपके नीचे के चक्र में प्रॉब्लम है, बंद है, तो आपका हार्ट भी पूरी तरह से नहीं खुल पाएगा। अगर आप बहुत सोच रहे हैं, बहुत ही भावुक है, बहुत इमोशन में है, बहुत ही फेयरफुल है, बहुत ही पूरे टाइम जजमेंट में है, तो आपका हार्ट कैसे खुलेगा? आप कैसे पूरी तरह से ओपन हो पाएंगे? इस वजह से लोअर 3 चक्रास आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लक्ष्मी जी ने कहा है कि मनुष्य होने का अर्थ ही हमारे नीचे के 3 चक्र पे ध्यान देना है, उन पे काम करना है, उन्हें बैलेंस रखना है, उन्हें खोलना है। हमें ये नहीं सोचना कि हमें ऊपर के चक्र ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो हमें ज्यादा स्पिरिचुअल एवोल्यूशन देते हैं, उससे हम ज्यादा स्पिरिचुअल बनेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा, गलत है। नीचे के 3 चक्र बिल्डिंग की फाउंडेशन है। आप चाहे कितनी भी ब्यूटीफुल अमेजिंग बिल्डिंग बनाएं, लेकिन अगर नीचे के फाउंडेशन अगर वीक है, फाउंडेशन नहीं है, अगर ऐसे ही बिना ज्यादा नीचे डीप के फाउंडेशन आपने बिल्डिंग बना दी, even if it's the world's most beautiful building, it will fall anytime, right? Same way, the lower 3 chakras are the foundation of your being. So it's very important to be balanced, to be strong, to be grounded, ठीक है। आपके ज्यादा फालतू के विचार रहेंगे, आप पूरे टाइम भावुक रहेंगे, आप पूरे टाइम डरते रहेंगे, पूरे टाइम जजमेंट में रहेंगे, पूरी सब दुनिया को आप जज कर रहे हैं, ऐसा नहीं, इसने ऐसा किया, ये तो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, तो आप लिमिटेशन में रहेंगे। फिर आप अपने पूरे प्रकाशित स्वरूप में कैसे जुड़ेंगे? आप कैसे आगे बढ़ेंगे? आप नीचे मन में ही डूबे रह जाएंगे। यू हैव टू राइज अबव योर माइंड। सो द लोअर 3 चक्रास हैव टू बी बैलेंस्ड, देन द हार्ट ओपन्स अप, और फिर धीरे धीरे ऊपर के जो चक्र है वो हमेशा खुले रहते हैं, ओके। नीचे के चक्र जो गड़बड़ करते हैं उस वजह से उसकी जो एनर्जी ऊपर तक जाती है और ऊपर तो ये सब बंद हो जाता है।
तो जो भी फ्लो ऊपर से आ रहा है, ऑल द एनर्जी, ऑल द ब्लेसिंग्स, ऑल द सोल फीलिंग्स विच आर फ्लोइंग फ्रॉम अबव, ओके, दे आर एबल टू ट्रैवल। लेकिन अगर हमारा हार्ट बंद है और नीचे के जो चक्रस बंद है बिकॉज टू मच ऑफ माइंड, तो वो आपको फील ही नहीं होगा, आपको सोल फीलिंग्स फील ही नहीं होंगे, राइट? आपको बोलोगे कैसे, कौन सी सोल फीलिंग, मेरे को तो जॉय एक्सपीरियंस नहीं होता, बहुत दुख है मेरी लाइफ में, बहुत ही गरीबी है, बहुत ही हेल्थ प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे में प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन आपका अगर मन स्ट्रांग है, मन हैप्पी है, मन जॉयफुल है, मन शांत है, मन में विश्वास है, मन में कनेक्शन है, मन ज्यादा इधर उधर नहीं भाग रहा, तो आप हर चीज में आपको उसकी उसका प्रकाश, उसमें उसका उसमें जो सीख है, उसमें लेसन है, उसमें जो आनंद है, हर चीज में आपको वो महसूस हो सकता है। और ये जितना हम सीखेंगे, मेडिटेट करेंगे, ध्यान करेंगे, धीरे 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 वो बढ़ने लगेगा और फील होने लगेगा। भले ही आगे अगर अभी आप नहीं समझ पा रहे, रिलेट नहीं कर पा रहे, तो भी आप ये मान के चलिए कि इस प्रैक्टिस से, क्रिया से, मेडिटेशन से हम खुलने लगते हैं, हम बदलने लगते हैं, और हमें जो चीज पहले नहीं समझ में आती थी और जो हम नहीं मान पाते थे, वो धीरे धीरे हम करने लग सकते हैं। ठीक है? सो फोर्थ चक्र वाज हार्ट चक्र एंड इट ओपन्स व्हेन योर लोअर 3 चक्रास ओपन। फिर फिफ्थ चक्र कौन सा है? विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र। ठीक है? तो हमारा एक्सप्रेशन, जो हमारे बोलने की ताकत, काबिलियत, क्रिएटिविटी, वेरी गुड, ब्लू नवनीता, यस, ब्लू कलर है। हार्ट इज ग्रीन कलर, थ्रोट, विशुद्धि चक्र ब्लू कलर है। तो जो अच्छे से आप बिना डरे, बड़े प्यार से, बड़े समझदारी के साथ अपनी बात कह सकते हैं, समझा सकते हैं, इसका मतलब आपका थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र क्लियर है, साफ है, ओपन है, तो आप समझा पाएंगे, अच्छे से बात कर पाएंगे, किसी को बिना बुरा लगाए अपनी बात कह पाएंगे। सो दैट्स द फिफ्थ चक्र। ठीक है? फिर सिक्स चक्र, छठा चक्र, अजन चक्र या थर्ड आई चक्र। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमारा इंट्यूशन है। ठीक है? तो ये है इंडिगो कलर, यानी कि डार्क ब्लू जो कलर होता है, इंडिगो कलर। और ये हमारी जो तीसरी आंख जो है ना, ये दो जो आंखें हैं जो नहीं देख पा रही, वो हमारी जो तीसरी, जो बीच में हमारी बीच की आंख है, थर्ड आई, वो है दैट कैन सी इनसाइड, विद इन। एंड जो इंट्यूशन, इंटेलिजेंस के भी ऊपर है। तो जो लॉजिक और इंटेलिजेंस आपको समझा नहीं पाएगा, वो आपका इंट्यूशन आपको बता सकता है। और हम उसी रास्ते, उसी तरफ, उसी एनर्जी में आगे बढ़ रहे हैं। तो पूरा ये जो यूनिवर्स है, उसकी एनर्जी अब शिफ्ट हो रही है, चेंज हो रही है। और आप देखेंगे जो लोग ध्यान कर रहे हैं, उन्हें जल्दी सब चीजें समझ में आएंगी। अगर कुछ गलत होता है तो उन्हें भनक आ जाती है। तो क्या होता है? ये इंट्यूशन है, भनक, राइट? जो आप बिना बिना किसी को आप बताए भी आप समझ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सिक्स और सिक्स सेंस, सिक्स चक्र। ठीक है? इंट्यूशन, यस, इट्स अ डार्क ब्लू शेड। और फिर फाइनली सेवेंथ जो चक्र है, सातवां चक्र, वो है क्राउन, क्राउन चक्र या तो फिर सहस्त्र चक्र संस्कृत में। और ये है वायलेट कलर या पर्पल वायलेट कलर, वो हो गया हमारा सातवां चक्र। ये जो सातवां चक्र है वो हमारे हमारे एनर्जी बॉडी का एंटेना है। जैसे रेडियो या टीवी में, पता है पुराने टाइम पे वो एंटेना लगता था ना, जो लंबा दो निकलते हैं, उससे क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी कनेक्ट होती है और हमें सिग्नल मिलता है। तो उसी प्रकार से, in the same way, our crown chakra is like our antenna that connects us and takes us to higher dimensions, higher energies, higher chakras. ठीक है? तो ये हो गए हमारे 7 energy points, 7 chakras. Okay? Root, sacral, solar plexus, heart, throat, third eye and crown. ठीक है? तो चलिए मैं अभी अब क्विज करती हूँ। हमारा तीसरा चक्र कौन सा है? विच इज आवर थर्ड चक्र? सोलर प्लेक्सस, वेरी गुड। और संस्कृत में इसको क्या कहेंगे? मणिपुर, वेरी गुड। व्हाट कलर इज द थर्ड चक्र? वेरी गुड, येलो, फैंटास्टिक।
अच्छा, अभी कौन सा एलिमेंट है ये थर्ड चक्र में जो आज हमने सीखा? एयर। वेरी गुड। आप सब समझ गए ना कि एयर एलिमेंट क्यों लक्ष्मी जी और सरस्वती जी ने समझाया है? इट्स बेसिकली अर्थ वाटर एयर लाइक द स्काई, ठीक है। और जो फायर और ईथर है, ये जो बाकी के दो तत्व है, वो हर हर चक्र में है, ठीक है। जो ईथर तत्व है वो हमें हमें हल्का बना के अपने ईथर बॉडी से कनेक्ट करता है। और जो फायर है वो हर चक्र में है, उसका वर्क अलग हो जाता है। नीचे के चक्र में क्रिएटिव फायर, बीचों हार्ट चक्र में हमें ये सस्टेन कराता है, और ऊपर के चक्र में जो भी चीज डिस्ट्रॉय करनी है, जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, उसको खत्म करता है। जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, इस प्रकार से, ठीक है। वंडरफुल। अच्छा, अब हमारे इमोशंस कौन से चक्र में है? नहीं, इमोशंस इज नॉट इन द हार्ट। सेकंड चक्र। वेरी गुड। सेक्रल चक्र, सेकंड चक्र, फैंटास्टिक। वेयर इज, अच्छा, हमारा जो फियर है, जो भय है, फियर कौन से चक्र में रहता है? रूट। फैंटास्टिक, वेरी गुड। My heart is opening up listening to all your correct answers. Very nice, beautiful. Good job. Okay, ठीक है। I think everybody's understood everything. Fantastic. अब चक्रस आप समझ गए हैं। अच्छा, अब ये जो देवी क्रिया है जो पार्वती जी ने चैनल की है, उसमें हम किस प्रकार से चक्र का समझ रहे हैं, उसे कैसे कर रहे हैं? तो बेसिकली हर ये चार फेजेस है। चार फेज मतलब चार स्टेज या चार फेज, ओके, ये पूरी देवी क्रिया में। तो जो पहला फेज है वो है हमारे सारे चक्रों को एनर्जाइज करना। एनर्जाइज मतलब उत्तेजित करना, एक्टिवेट करना, एनर्जाइज करना। इसलिए ये पहले फेज का नाम है एनर्जाइजिंग। सारे प्राणायाम्स है एनर्जाइजिंग प्राणायाम्स, ठीक है। सेकेंड फेज, जो दूसरा फेज है, उसमें सारे प्राणायाम्स जो है, उसमें हमारे सारे चक्रस क्लेंजिंग करेंगे, यानी कि क्लियर करते हैं सारे चक्रस को, तो वो है क्लेंजिंग फेज, ठीक है। सो एनर्जाइजिंग, उसके बाद सेकेंड फेज है क्लेंजिंग, फिर तीसरा फेज है हार्मोनाइजिंग। तो एक बार सब एनर्जाइज होके, क्लियर होके, फिर सारे चक्र एक दूसरे के साथ एनर्जाइज हार्मनी में काम करते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड फेज हो गया, हार्मोनाइजिंग फेज। और फिर जो चौथा फेज है इस देवी क्रिया का, जो फाइनल फेज है, जिसमें हम पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, आवर माइंड बिकम्स क्वाइट, कंप्लीटली एम्प्टी, दैट इज द विटनेसिंग स्टेज। जब हम अपने मन, अपने शरीर से एकदम, यानी कि अपने आत्मा, अपने प्रकाशित स्वरूप की तरह ही महसूस करने लगते हैं, एकदम हल्के, एकदम एम्प्टी, पूरे ध्यान के स्टेज में ये चौथा स्टेज आ जाता है, और ये है विटनेसिंग फेज। ओके, तो ये चार फेज हो गए देवी क्रिया में, ठीक है। और ये चार फेजों में चार स्टेप्स है, यानी हर फेज में चार चार स्टेप्स हैं। और हर फेज में जो पहला स्टेप है, राइट, वो हम एटलीस्ट पहले जो तीन फेजेस हैं उसमें स्टेप्स हैं, चौथा वाला ज्यादा मेडिटेशन का है, वो थोड़ा अलग है। तो पहले जो तीन फेजेस है उसमें सब प्राणायाम, और उसमें उसमें ज्यादा, यानी हम एक सेट तरीके से करेंगे, इधर उधर अलग अलग तरीके से नहीं, एकदम फिक्स्ड है वो। I am in phase of bliss and peace. Oh, that's so nice, Priyanka ji. Wonderful. Okay, so basically the first phase, second phase और third phase में चार steps हैं, ठीक है। हर phase में चार चार steps हैं। पहला step हमेशा हमारे ऊपर के जो भाग पे हम काम करेंगे, ऊपर के जो चक्र है, यानी क्राउन, थर्ड आई और थ्रोट। ये जो ऊपर के जो तीन चक्र हैं, ये हमारे पहले स्टेप में कवर हो जाते हैं हर हर फेज में। जो दूसरा स्टेप रहेगा वो हमेशा हमारे हार्ट का रहेगा, अलग से एक हार्ट हार्ट पर काम करता हुआ, ठीक है। तीसरा स्टेप हमेशा हमारे पेट के भाग में, मतलब सेकंड और थर्ड चक्र, जो मणिपुर और स्वादिष्टान चक्र को कंबाइन करके उस पे काम करता है, तीसरा स्टेप। और जो चौथा स्टेप है वो हमेशा मूलाधार, रूट चक्र पे काम करेगा, ठीक है। सो बेसिकली पहले स्टेप को हम हमेशा कहते हैं
थर्ड आई प्राणायाम, ठीक है। सो हर पहले स्टेप को बोलेंगे थर्ड आई प्राणायाम, एनर्जाइजिंग थर्ड आई प्राणायाम। फेज 1 में होगा एनर्जाइजिंग थर्ड आई प्राणायाम, फेज 2 में होगा क्लेंजिंग थर्ड आई प्राणायाम, फेज 3 में होगा हार्मोनाइजिंग थर्ड आई प्राणायाम, इस तरह से, ठीक है। दूसरा जो स्टेप है हमेशा हार्ट का रहेगा, ठीक है, तो हार्ट प्राणायाम। तीसरा हमेशा बीच का, हमारे सोलर प्लेक्सस और सेक्रल, तो नेवल प्राणायाम इसको कहते हैं। नेवल, नेवल क्यों? क्योंकि हमारे नाभि के ऊपर और नीचे जो दो चक्र है, ये थर्ड स्टेप इन दोनों चक्र को कवर करता है। और जो चौथा है वो सिर्फ हमारे मूलाधार पर ध्यान देता है, तो हमारा रूट चक्र है, तो उसे कहेंगे रूट प्राणायाम। तो ये नाम दिए गए हैं इस 4 स्टेप्स के, थर्ड आई प्राणायाम, हार्ट प्राणायाम, नेवल प्राणायाम और रूट प्राणायाम। तो ये 4 ये फेजेस में रहेंगे, ठीक है। अब हम ये प्राणायाम क्यों हम क्रिया में ज्यादा करते हैं, मैं आपको ये एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो आई वांट टू शेयर विथ यू कि अब हमारा मन तो बड़ा चंचल है, तो जो चीज छोटी है उसे बड़ी चीज संभाल पाती है कि बड़ी चीज को छोटी चीज संभाल पाती है? आप बताएं। जो बड़ी चीज है वो छोटी चीज को संभाल सकती है, करेक्ट। छोटी चीज बड़ी चीज को नहीं संभाल सकती, राइट। सो दैट इज वाई, सेम वे मैंने क्या सिखाया था कि सबसे छोटा हमारा मन छोटा है कि हमारा शरीर छोटा है? मन, वेरी गुड। हमारा जो माइंड है उसकी इंटेलिजेंस, उसकी कॉन्शियसनेस हमारे शरीर की इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस से छोटी है, ठीक है। इसका मतलब कि हमारा जो बॉडी है, हमारा शरीर है, our body can control the mind, ओके। माइंड कैन ऑल्सो कंट्रोल द बॉडी, लेकिन माइंड क्या होता है कि पूरे टाइम चलता रहता है, चलता रहता है, धीरे 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 हमारे बॉडी में फिर प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो बॉडी है वो बहुत ही स्ट्रांग है, सो बॉडी कैन क्विकली, या बॉडी इज बिगर, बॉडी इज नॉट जस्ट फिजिकली बिगर बट in its consciousness, in its intelligence, it is bigger. So it can contain the intelligence and the consciousness of the mind. इसलिए कहते हैं ना, बहुत बार लोग अगर बहुत टेंशन होता है तो बहुत लोग रन पे जाते हैं या जिम में जाते हैं या योगा करते हैं, तो उनको थोड़ा अच्छा फील होता है। Why? Because your body is basically doing the work and then the mind becomes quiet, ठीक है। लेकिन अगर आप माइंड को शांत करने के लिए माइंड को ही यूज करते रहेंगे कि नहीं 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 मुझे ऐसा नहीं सोचता, तो नहीं वर्क होता है। लेकिन अगर बॉडी आप यूज करेंगे तो आप अपने माइंड को शांत कर पाएंगे। तो अगर आप स्विम पे जाएं या घर में कुछ काम करना शुरू कर दें या कुकिंग करें या कुछ अपना कुछ कबर्ड को जमा दें या फिर रन पे चले जाएं या जिम में चले जाएं, तो कुछ एक्टिविटी करने से आपका माइंड थोड़ा शांत हो जाता है क्योंकि आपकी बॉडी एक्टिविटी करती है, राइट। तो जो ब्रेथ है, जो सांस है, राइट, वो भी हम प्राणायाम करते हैं, तो हमारा मन प्राणायाम कर रहा है कि हमारा शरीर प्राणायाम कर रहा है? आप बताएं मुझे आंसर करके। हु इज डूइंग द ब्रेथ वर्क? बॉडी, यस, एग्जैक्टली। आप माइंड में तो नहीं सोच रहे ना प्राणायाम करना, आप वाकई में प्राणायाम करेंगे जब करेंगे। तो व्हेन यू डू योर ब्रेथ वर्क यू आर एक्चुअली गोइंग टू डू द ब्रेथ वर्क, सो योर बॉडी विल डू इट। इस वजह से प्राणायाम करने से हम अपने मन को काबू में रख सकते हैं, बिकॉज the only one and only connection of your body with your mind physically is with only one thing. तो बेसिकली हम जब पैदा होते हैं तो कहते हैं ना, हम आए हैं अकेले, जाएंगे अकेले, लेकिन वी आर बॉर्न विद द ब्रेथ, ठीक है ना। सांस जो है, प्राण, प्राण मतलब लाइफ, बिना ब्रेथ के तो लाइफ ही नहीं है पॉसिबल। सो और कहते हैं ना, जब आप डेथ सर्टिफिकेट कब कह देंगे, जब जिसने सांस अगर बंद होगी तब तक उसको, तभी जा डेथ मानेंगे, राइट। जब तक कोई सांस ले रहा है तो उसे नहीं कह सकते कि ये अब खत्म हो गए, नहीं कह सकते ना। जब तक सांस है तब तक लाइफ है, और जिस दिन आपकी सांस बंद हो गई देन यू आर नो मोर। उसी तरह से अगर कोई बेबी भी बॉर्न होता है तो अगर सांस ले रहा है तो ठीक है, नहीं तो स्टिल बॉर्न है। तो सांस इज व्हाट इज कनेक्टेड टू योर लाइफ, ठीक है। सो प्राणायाम, तो आपके ब्रेथ का एक्सरसाइज इज, आयाम मीन्स लाइक एक तरीका, इज प्राणायाम। सो ओनली थिंग दैट कंट्रोल्स योर माइंड फ्रॉम योर बॉडी इज द ब्रेथ, ठीक है। अब ये ऐसा कैसा हुआ? अगर आप सोच रहे हैं, मान लीजिए आप बहुत ही खुश हैं, ठीक है, आपने कभी सोचा है कि आप की ब्रीदिंग कैसी है उस तरह, उस टाइम पे?
जब आप बहुत ही खुश हैं तो आपकी ब्रेथ कैसी है, आप कैसे सांस ले रहे हैं? जब आप बहुत दुखी होते हैं, आपको तो सोचने का भी नहीं सोचता कि भाई मैं कैसे सांस ले रही हूं। सेम वे, वेरी गुड, फास्ट, यस दैट्स राइट। अगर आप बहुत डिप्रेस्ड हैं तो आपकी सांसें कैसी आप होगी? थोड़ी शैलो रहेगी ना, एकदम डीप और रिलैक्सिंग तो नहीं होंगी। अगर आप बहुत ही गुस्सा है तो आप कैसे ब्रीथ कर रहे हैं? शैलो, फास्ट, डीप रिलैक्सिंग ब्रीथ तो आप ले नहीं रहे हो। तो बेसिकली हर टाइम आपके विचार बदलते हैं, हर टाइम आपके इमोशंस बदलते हैं, एवरी टाइम योर थॉट एंड योर इमोशंस आर चेंजिंग, द वे यू आर ब्रीदिंग इज ऑल्सो चेंजिंग। सी, डज दैट मेक सेंस? तो अगर आपकी सांसें हर विचार, हर भावना के साथ बदल रही है, तो आप अगर उल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है ना तो उसका इक्वेशन, तो अगर आप सांस एक तरीके से लेंगे तो आपकी भावना भी उससे कंट्रोल हो जाएंगी। यू अंडरस्टैंड? तो आपके मन और ये भावनाएं जो है और ये जो विचार है, आप कौन कौन उत्पन्न कर रहा है? कहां से आ रही है भावनाएं, कहां से आ रहे हैं विचार? आपके शरीर में से तो नहीं आ रही है ये भावनाएं और विचार, आपके मन में से आ रही है ना। तो आपका जो मन है, योर माइंड इज जनरेटिंग द थॉट्स एंड द इमोशंस, and that emotions and thoughts are controlled and directly proportionate and connected to the breath, the way you are breathing. Okay? तो अगर आप गुस्सा होना चाहते हैं, लेकिन जो गुस्से वाली जो ब्रेथ है, अगर आप वैसे ना ब्रीथ करें तो आप गुस्सा नहीं एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अगर आप गुस्सा गुस्सा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको एकदम हफ पफ करना पड़ेगा और आपको एकदम शैलो और एंग्री काइंड ऑफ ब्रेथ लेनी पड़ेगी, तभी आपको गुस्सा आएगा। वो इमोशन आएगा ही नहीं, वरना आप एकदम शांति से लंबी गहरी सांस लेते हुए आप कैसे गुस्सा किसी को करेंगे? आप कर सकते हैं क्या? नहीं पॉसिबल है। तो उसी प्रकार से अगर आप बहुत ही डिप्रेस्ड हैं तो भी आप, तो यानी कि आपकी सांसें आपके इमोशंस आपके मन से कनेक्टेड है। तो खाली एक चीज आपके माइंड को कंट्रोल कर सकती है, वो है आपकी सांस, आपकी ब्रेथ। इसीलिए प्राणायाम का महत्व सिखाया गया है योगा में, और हमारे सारे उपनिषद और हमारे पूरे संस्कार वगैरह में प्राणायाम का महत्व इतना क्यों दिया गया है, योग का महत्व क्यों दिया गया है? क्योंकि सब चीज हमारे मन से ही शुरू और खत्म होती है, और मन को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम एक उपाय है। Only your breath can control your mind. Okay? And that is why Parvati ji and Shiv ji were doing a lot of yogic practices. Okay? So ये जो पार्वती जी ने चैनल किया है ब्रेथ वर्क, क्योंकि और कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि उनको मालूम है कि मेडिटेशन करने के लिए मन को शांत करना है, और मन को शांत करने के लिए सिर्फ एक चीज काम करेगी, वो है ब्रीदिंग, ब्रेथ वर्क, प्राणायाम। ठीक है? लेकिन अब प्राणायाम भी, आप कोई भी प्राणायाम कैसे भी कर सकते हैं, हाँ उसका असर तो होगा और आपको फायदा भी होगा, लेकिन अगर आप समझकर एकदम स्टेप बाय स्टेप करेक्ट प्राणायाम को करेक्ट चक्र पर ध्यान देते हुए समझ के साथ, विजुअलाइजेशन के साथ, चांटिंग के साथ, सब कुछ करके करेंगे तो उसका जो असर है, इफेक्ट है, वो एकदम धमाकेदार होगा। लाइक दैट विल बी अ मच मोर पावरफुल एक्सपीरियंस एंड अ शिफ्ट देन जस्ट डूइंग नॉर्मल कपालभाति या अनुलोम विलोम। वो सब आप कर सकते हैं अपने योगा के लिए, हेल्थ के लिए, लेकिन ये जो देवी क्रिया मैं आपको सिखाऊंगी, वो पार्वती जी ने एक के बाद एक कौन से प्राणायाम किसके बाद किस ध्यान पे किस चक्र पे करते हुए करना है, वो करना है, बहुत ही आसान है। और ये आप समझ के करेंगे, then you will see the effect and what a blessing it is, and you'll be full of happiness and joy, not happiness, joy, bliss, and the unconditional gratitude, love, compassion, abundance, all these soul feelings you will become a carrier of. ठीक है? You will be connected to your higher self. अब हम अपने प्रकाशित रूप से कनेक्ट रहेंगे, ये जो सोल फीलिंग्स है उसे हम बहुत ही अच्छे से, आसानी से, पीस वगैरह सब महसूस कर पाएंगे। और जब हम ऐसे हो जाते हैं तो हम जहां भी जाते हैं हमारी एनर्जी वैसी हो जाती है ना। तो अगर आप पीस वाली एनर्जी, लव वाली एनर्जी, कंपैशन, ग्रैटिट्यूड, क्रिएटिविटी, हैप्पीनेस, जॉय, इस एनर्जी के साथ जहां भी जाएंगे, आपका परिवार, आपके काम में, आपके दोस्त लोग कहां पे भी जाएंगे, तो आप वही एनर्जी स्प्रेड करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी वही है ना। तो ये है। अच्छा, दूसरी बात, आप अपने जो भी फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो भी बॉडी में प्रॉब्लम्स हैं, माइंड में प्रॉब्लम है,
अटेंशन के प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम्स है, ये सब धीरे 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 रोज देवी क्रिया करने से ये सब क्लियर हो सकते हैं. सो मैं आपके बेनिफिट्स और महत्व बता रही हूँ देवी क्रिया के. फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सारे चीज पे देवी क्रिया करने से आपको धीरे 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 शिफ्ट होंगे और फायदा होगा. आपका बॉडी वेट लॉस से लेके सारे अंदर के ऑर्गन्स अच्छे से चलने से लेके, फुर्ती से लेके, आप यंग फील करेंगे, दिखेंगे से लेके, जो भी इश्यूज हैं वो सब. माइंड अगर बहुत ज्यादा पूरे टाइम आप सोचते रहते हैं, बहुत ज्यादा भावुक हैं, जल्दी आप डिप्रेस हो जाते हैं, धीरे धीरे सब चेंज होने लगेगा. क्योंकि हमारा जो नेचर है, हमारे पर्सनालिटी है, हमारा जो कर्म है, वो सब हमारे मन से ही तो होता है, राइट? That explains your beauty. Oh, thank you. That's very sweet. So basically, what winds up happening is, अगर जिस जिस चीज या जिस भाव या जिस विचार में जो मनुष्य ज्यादा स्पेंड टाइम करता है, वो वैसा बन जाता है. तो मान लीजिए हम सबका नेचर, हम सबकी पर्सनैलिटी एक प्रकार से बन जाती है, राइट? अगर कोई कोई लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो वो बोला गुस्से वाली पर्सनैलिटी है. कुछ भी बोलो जल्दी गुस्सा भड़क जाते हैं, गुस्सा आ जाता है. व्हाई? बिकॉज क्या होता है कि अगर एक बार मान लीजिए कुछ हुआ और आपको गुस्सा आ गया, तो आप ब्रीथ करने लगे गुस्से जैसे, huffing and puffing and having that breath which is short, not deep. फिर क्या होता है कि आपकी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है, तो उसने समझ लिया कि हाँ, अगर गुस्सा करना है तो इस तरह से ब्रीथ करना है. तो योर बॉडी इज रजिस्टर्ड द स्टाइल ऑफ ब्रीदिंग व्हेन यू गेट एंग्री. तो अगली बार जब कुछ होता है, समथिंग एल्स दैट हैपेंस व्हेन यू गेट एंग्री, इट बिकम्स इजियर टू गेट एंग्री बिकॉज यू आर फेमिलियर. आपकी बॉडी को मालूम है कि कैसे ब्रीथ करना है गुस्सा फील करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए. तो हर बार कुछ भी होता है, आप उतने जल्दी भड़क जाएंगे, उतने जल्दी आप गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी की मेमोरी है, सेल मेमोरी है, उसमें ये ब्रीदिंग पैटर्न धीरे 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 ज्यादा क्लियर होने लगा है, समझने लगा है. तो जो चीज आप रोज करेंगे, आप उसमें माहिर हो जाएंगे, आप वो जल्दी करने लगेंगे, राइट? पहली बार अगर आप कुछ करेंगे तो आप धीरे से करेंगे, आपको अच्छे से पता नहीं है. फिर दूसरी बार करेंगे तो आप समझ गए, तो और अच्छे से करेंगे. ऐसे करते करते अगर हर चीज आप रोज करेंगे तो आप फटाफट करेंगे. तो इसी प्रकार से अगर आप गुस्सा भी करेंगे रोज, तो आपको जल्दी गुस्सा आएगा, क्योंकि आपका नेचर ऐसा हो गया है. उसी प्रकार से कोई कोई लोग इतने डरपोक हो जाते हैं, कुछ भी होता है वो डर जाते हैं, फिर उनको वो ब्रीथ करने लगते हैं डर जैसी ब्रीथ. फिर अगली बार वापस कुछ होता है तो जल्दी से डर जाते हैं. तो क्या होता है, कुछ लोग जल्दी से डरने लगते हैं क्योंकि उनकी ब्रीदिंग पैटर्न ही ऐसी बन गई है. तो वो उनका नेचर, उनकी पर्सनालिटी, उनका तरीका डर से जल्दी अफेक्ट हो जाता है. कोई कोई लोग होते हैं कि उनको बहुत ही फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं और होपलेसनेस, यानी कि हर चीज में गिव अप हो जाते हैं, उनको नहीं, डाउन फील करने लगते, डिप्रेस हो जाते हैं. तो क्या होता है कि कुछ भी हो जाता है तो जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं. तो बेसिकली हमें क्या करना है, ये प्राणायाम करने से, ब्रीदिंग करने से, इस तरह से आप धीरे 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 जिस तरह से आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, वो सब आपका मेमोरी क्लियर हो जाएगी. और रोज देवी क्रिया करने से परफेक्ट ब्रीदिंग, परफेक्ट पैटर्न, परफेक्ट क्लियर थिंकिंग के साथ धीरे 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 आपके जो भी पुराने तरीके हैं, पुराने हैबिट्स हैं, पुराना नेचर है, सब चेंज होने लगेगा. आपका मन बदल जाएगा, आप खुद बदल जाएंगे. तो अगर पहले आप जल्दी गुस्सा हो जाते थे, जल्दी इरिटेट हो जाते थे, जल्दी जजमेंट करने लगते थे, जल्दी डर जाते थे, जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, जल्दी डिप्रेस हो जाते थे, तो धीरे धीरे कम हो जाएगा. सो इट वर्क्स ऑन अस मेंटली, इमोशनली, योर पर्सनैलिटी विल चेंज और आपका कर्म बदल जाएगा, कर्मा बदल जाएगा. कर्मा कैसे बदलेगा? क्योंकि जैसे आपका मन है उस तरह के आपके एक्शंस रहेंगे, राइट? कर्मा मतलब क्या होता है? कैन एनीबडी टेल मी, कैन यू टाइप व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्मा? कर्मा का मतलब क्या होता है? एक शब्द में क्या होता है कर्मा? एक्शन. सुष्मिता, वेरी गुड. व्हाट? एनी एक्शन. विद्या, वेरी गुड, वेरी गुड. एग्जैक्टली, वन वर्ड में कर्मा मतलब एक्शन. एक्शन मतलब एक्टिविटी ना, आप जो कर रहे हो वो एक्शन है. तो एक्शन आप बिना सोचे तो लेते नहीं हो. हाँ, बिना सोचे भी बहुत लोग एक्शन लेते हैं, लेकिन बेसिकली
एक्शन लेने के लिए आप जो भी आप सोच रहे हैं, अगर आप डरे हुए हैं तो आप भाग जाएंगे, तो आपके भागने का एक्शन डर की वजह से हुआ। अगर आपको किसी से लड़ना है और आप किसी के साथ लड़ने लगे तो वो एंगर से आ रहा है, राइट? तो आपका एक्शन जो है वो गुस्से से आया है। या तो फिर आप भाग गए तो वो डर से आया है, या तो फिर आप किसी से अगर आपको जेलसी फील हो रही है, एनवी फील हो रहा है, तो वो वहां से आ रहा है, तो आप उसकी वजह से किसी से शेयर नहीं करेंगे, या उससे किसी से कुछ छुपाएंगे, या जो भी आप कर रहे हैं आपके मन से इमोशंस, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो सब आ रहे हैं, राइट? सो दैट इज व्हाई when your mind becomes clear, your habits become change, your thinking will change, your actions will change, your karma will change, you will change, and धीरे 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 हम डिवाइन बींग्स हैं विद इन्फिनिट पोटेंशियल। तो आप आज जो भी है, कल न्यू मून है, राइट? तो हम हर दिन बदलेंगे और अपना नया स्वरूप, प्रकाशित स्वरूप की ओर बढ़ते चले जाएंगे, राइट? और जब भी कुछ फेलियर हो या कुछ अच्छा नहीं हो तो क्या हुआ, बस अपने आप को याद दिलाइए कि आप दिव्य हैं, आपका पूरी तरह से प्रकाशित स्वरूप किसी से कम नहीं है। और आपके दिमाग, आपका बस मन है आपके बीच में, ईगो है जो मन को चेंज कर रहा है, आपके विचार और आपके इमोशंस, बस। सो दैट्स इट। एंड नाउ with that understanding, what I'm going to do is explain to you very briefly about the क्रिया और उसमें क्या होता है। आज हमने बहुत सीखा है और मैंने शेयर किया है। I'll share a few more things। उसके बाद जो प्रोसेस है कि क्रिया के स्टेप्स क्या हैं, कौन से प्राणायाम है, कैसे करना है, वो मैं आपसे कल शेयर करूंगी। आप एकदम फ्रेश आइएगा, कंफर्टेबल लूज कपड़े पहन के, और कल मैं आपको पूरे स्टेप्स सिखाऊंगी, सारे फेज में कौन से प्राणायाम है, कैसे करेंगे। और सीखने के बाद आपके सारे प्रश्न को क्लियर करने के बाद हम साथ में पूरी देवी क्रिया करेंगे, ठीक है? तो आज का दिन हम सबको कनेक्ट होकर, समझकर, ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम जब समझ के आगे करेंगे तो क्या होगा, हमारा मन इधर उधर नहीं भागेगा, क्योंकि मन समझ गया है कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सा चक्र क्या काम कर रहा है, सोल फीलिंग क्या होती है, हायर सेल्फ क्या है, चक्रस क्या है, राइट? तो अगर हमने सब समझ लिया है तो क्या होगा, हमारा माइंड हमें फालतू के क्वेश्चन नहीं सोचेगा कि ये क्या कर रही हो, इससे कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं। अब आप समझ गए हो, तो समझ के जो करने से क्या होता है, माइंड शांत रहेगा, बॉडी तो कर ही रहा है आपका काम जो करेगा। फिर सोल और हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हुए हम चारों कॉन्शियसनेस, माइंड, बॉडी, सोल एंड हायर सेल्फ, चारों कॉन्शियसनेस से जुड़ के हम देवी क्रिया सीखेंगे और करेंगे, ठीक है? तो एनी क्वेश्चंस? यू मोस्ट वेलकम। अच्छा, अब मैं सिर्फ इतना आपको थोड़ा और बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि चक्रस आपने समझ लिए हैं, चार कॉन्शियसनेस आपने समझ ली हैं, सोल फीलिंग्स आप समझ गए कि क्या है। बेसिकली देवी क्रिया में चार फेजेस हैं, और पहला फेज 4 स्टेप्स, दूसरा फेज 4 स्टेप्स, तीसरा फेज 4 स्टेप्स। ये सारे जो स्टेप्स हैं इसमें अलग अलग प्राणायाम्स हैं। पहले फेज में हम अपने सारे चक्रस को एनर्जाइज करेंगे। एनर्जाइज क्यों? क्योंकि बिना एनर्जी के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है ना? तो पहले फेज के बाद हम पूरी तरह से एनर्जाइज हो जाएंगे अपनी एनर्जी के साथ। फिर दूसरे स्टेप्स में जो प्राणायाम करेंगे उसमें हम क्लेंजिंग करेंगे। क्लेंजिंग मतलब क्लीन, साफ। तो जो भी ब्लॉक्स, जो भी पुराने विचार, थॉट्स, वो सब उसको क्लीन करते हुए हम अपनी एनर्जी को और प्योरीफाई कर लेंगे, ठीक है? फिर तीसरे स्टेप में जब हम अच्छे से एनर्जाइज हो चुके हैं, हमारे सारे चक्रस क्लीन हो चुके हैं, तब एक साथ मिलके हमारे चक्र एक रिदम की तरह, एक डांस की तरह हार्मनी में हम जो प्राणायाम करेंगे वो हार्मोनाइजिंग होगा। और फिर आखिर में द फोर्थ फेज विल बी विटनेसिंग, जहां पे हम पूरी तरह से शांत, एकदम शून्य की ओर चले जाएंगे, और जो हम ब्रीदिंग करेंगे वो हमें और हल्का 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 और शून्य की ओर ले जाएगा, और एक मेडिटेशन जैसे हम स्थिति में आ जाएंगे, ठीक है? तो ये है बेसिकली देवी क्रिया और इसके जो फेजेस जो हम कल सीखेंगे। मैं नहीं चाहती अभी आपसे मैं सिखाऊं, क्योंकि अब हमने काफी इंफॉर्मेशन सीखी है, सुनी है, और फिर ओवरलोड नहीं होना चाहिए इंफॉर्मेशन का, राइट? एंड हम
5 मिनट का मेडिटेशन आज जरूर करेंगे, जस्ट टू एक्सपीरियंस सम ब्यूटीफुल एनर्जीज ऑफ द देवीज, क्योंकि जो डिवाइन एनर्जीज, गॉडेस एनर्जीज जो है वो हम जरूर एक्सपीरियंस आज करेंगे जाने के पहले। हाँ, आप चेयर पे बैठ सकते हैं, आप बेड पे बैठ सकते हैं, आप सोफे पे बैठ सकते हैं, आप जमीन पे बैठ सकते हैं, बिकॉज आपकी खाली पीठ सीधी होनी चाहिए। योर बैक हैज टू बी स्ट्रेट, योर स्पाइनल कॉर्ड हैज टू बी स्ट्रेट, अदरवाइज यू कैन सिट, यू डजंट हैव टू बी ऑन द फ्लोर। आप कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप पेन में रहेंगे, कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, तो आप कैसे कर पाएंगे, कैसे एंजॉय कर पाएंगे। तो आपको जो पोजीशन कंफर्टेबल लगती है उसमें आप बैठिए, खाली आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है, कीप योर बैक स्ट्रेट। सो दैट्स वन थिंग। अच्छा, और कल मैं आपको पूरा पावर पॉइंट के साथ क्रिया समझाऊंगी, दिखाऊंगी, और हम साथ में भी करेंगे, ठीक है। हम एक्चुअली इन देव, why is it channeled, and we connect with all the devis, ठीक है। तो ये जो फेमिनिन एनर्जीज है, गॉडेस एनर्जीज, देवी एनर्जीज, ये अभी बहुत पावरफुल है। तो अभी हम इस दौर से गुजर रहे हैं, वी आर गोइंग थ्रू अ फेज in our evolution in this time where we are moving into higher dimensions, and the divine feminine energies are very powerful and required, ठीक है। तो बेसिकली जो बीज मंत्र है जो हम चांट करेंगे, मैं कल दिखाऊंगी, हम ओम का उच्चारण करेंगे, फिर बीज मंत्र करेंगे टू एक्टिवेट एंड इन्वोक ऑल द एनर्जीज एंड गॉडेसेस। उसके बाद एक के बाद एक हम हर फेज में प्राणायाम करेंगे। तो मैं चाहती हूं कि हम सब कुछ देवी की एनर्जीज है उसे महसूस करें, फील करें। तो क्या हम 5 मिनट बीज मंत्र के साथ मेडिटेशन कर सकते हैं? आर यू ऑल रेडी? ठीक है, थम्स अप। चलो, लवली, वंडरफुल। सो प्लीज रिलैक्स, सिट कंफर्टेबली, एकदम रिलैक्स होते हुए। पहले हम 3 ओम का उच्चारण करेंगे साथ में। तो आप सब एकदम सुकून के साथ, ओम जो है वो बीज मंत्र कनेक्शन का है। तो हर चीज जब हम किसी से जुड़ना चाहते हैं तो हम ओम का उच्चारण करते हैं। सो ओम कहने के बाद हम जिस चीज और जिस देवी देवता या जिस एंटिटी को कहते हैं हम उससे जुड़ते हैं। तो हम पहले 3 ओम उच्चारण करेंगे। पहले ओम में हम अपने हृदय, अपने हार्ट से कनेक्ट होंगे। तो मैं चाहती हूं कि व्हेन यू ब्रीद इन एंड से ओम, जो ओम का वाइब्रेशन है उसे अपने हार्ट में फील करिए, जैसे कि ये वाइब्रेशन जो आपके गले से आ रहा है वो आपके हार्ट अनाहत चक्र में खस बस महसूस करना है। और ये आपको महसूस करना है कि आप अपने हार्ट को खोल रहे हैं और कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। सो टेक अ नाइस, और चाहे आप चश्मा वगैरह उतार सकते हैं, एकदम रिलैक्स होके सीधा बैठिए, शोल्डर्स एकदम रिलैक्स, जेंटल स्माइल्स मुंह पे, मुस्कुराते हुए अपनी एनर्जीज को रिलैक्स खुले रखते हुए नाक से लंबी गहरी सांस लेंगे और अपने हृदय अनाहत चक्र से कनेक्ट होने की भावना से ओ वंडरफुल। अपनी आंख बंद रखें और अपना ध्यान, कीपिंग योर अटेंशन ऑन योर हार्ट, अपने हृदय की ओर, फीलिंग योर हार्ट बीट। अपने हृदय, अपने हार्ट अनाहत में जो भी फीलिंग, एनर्जी आप महसूस कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उस पर ध्यान देते हुए, उससे जुड़े हुए रहकर, मुस्कुराते हुए, हर सांस के साथ अपनी नाक से लेते हुए जैसे कि आप प्रेम भाव, unconditional love you're filling in your heart with every breath। हर सांस के साथ अपने हृदय में आप प्रेम भाव भर रहे हैं।
और अब हम दूसरे ओम का उच्चारण करेंगे एंड दिस टाइम इन द सेकेंड ओम फील योर वाइब्रेशन, फील द एनर्जी टेकिंग यू डाउन। आप जैसे कि अपने पैर की ओर और पृथ्वी माँ के अंदर बीचों बीच जाके आप अपनी एनर्जी नीचे पृथ्वी माँ के अंदर बीचों बीच उनकी एनर्जी से जुड़ रहे हैं। इस विचार, इस इंटेंशन, इस सोच के साथ नाक से लंबी गहरी सांस लेंगे। वंडरफुल। कुछ पल, कुछ क्षण, just breathing in and absorbing the beautiful grounding healing energy of Mother Earth, Prithvi Maa की grounding healing energy को हर सांस के साथ अपने अंदर भरेंगे। और ये सुकून के साथ जो भी हेवी एनर्जीज, ओल्ड एनर्जीज, भारीपन पहले जो भी हम लेके चल रहे थे, हम सब यहाँ पे छोड़ देंगे। dropping everything, feeling light. And now हम तीसरे ओम का उच्चारण करेंगे और इस बार we will chant this om with the intention of connecting with our higher self. तो हम अपने आत्मा और अपने प्रकाशित स्वरूप से जुड़ने की भावना से जुड़ने के इंटेंशन और सोच से, जैसे कि आप इस ओम के साथ अपने आप को ऊपर आकाश की ओर और ऊपर एक सुनहरी गोल्डन लाइट की ओर जाते हुए महसूस कर रहे हैं। और इस सोच, इस भावना, इस इंटेंशन के साथ इस ओम का हम ये उच्चारण करेंगे। वी विल चांट दिस ओम और जाके इस गोल्डन लाइट, चाहे आप उसे देख पाए या नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बड़े सुकून के साथ इस ओम का उच्चारण करते हुए हम अपने हायर सेल्फ से जुड़ जाएंगे। Let's take a nice deep breath. Wonderful. And now just relax. Keep a gentle smile on your face. And with every breath, हर सांस के साथ अपने आप को और धीरे धीरे रिलैक्स होता हुआ, हल्का होता हुआ महसूस कीजिए। जैसे कि आप धीरे धीरे अपने शरीर से, अपने मन से, हर चीज से डिटैच होते हुए इस गोल्डन एनर्जी का एक हिस्सा बन रहे हैं। और यहाँ पे जो भी दिव्य शक्तियां, एनर्जीज हैं, उनसे जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, उन्हें फील कर रहे हैं। तो हम अब महादेवियों की एनर्जी को इन्वोक करते हुए कुछ पल बस इस ध्यान की अवस्था में रहेंगे।
Up gently, very gently. Take a nice deep breath from your nose. हम नाक से लंबी गहरी सांस लेंगे.
breathing in this beautiful energy of all the goddesses and their blessings. Taking in all the healing, the grace, the love, and the soul feelings. हम अपने दोनों हाथ को साथ में ले आएंगे एक नमस्ते की पोजीशन में, और दोनों हथेलियों को let's rub our two palms. Feel the warmth in between your palms. हमारे हथेलियों के बीच में जो गर्मी है उसे फील करते हुए हम धीरे से अपने हथेलियों को अपनी आंखों पे ले जाएंगे. Cup your eyes. Slowly in the cup of your palms, you can open your eyes. और धीरे से हम ध्यान के बाहर आ जाएंगे. Thank you. I hope you felt some beautiful energies. तो मैं यही चाहती थी कि आज हम पहला दिन है, सो हम देवी क्रिया के बारे में समझें, सीखें, जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, we can understand. And then tomorrow, कल हम फ्रेश माइंड से वापस मिलेंगे, और मैं एक्चुअली ये क्रिया जो है, इसके स्टेप्स हैं, इसके जो जो प्रोसीजर है, इसे मैं आपको सिखाऊंगी. तो कल आप फ्रेश होके आइएगा और कंफर्टेबल लूज कपड़े पहन के आइएगा, और कल हम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करेंगे. और मैं चाहती हूँ कि ये एनर्जीज इतनी अच्छी है कि अब मैं क्वेश्चन आंसर्स के ऑलरेडी हमारा टाइम थोड़ा ऊपर निकल गया है. तो अगर आपके कोई भी प्रश्न या इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कल आप याद से मुझे शुरू करने के टाइम अगर आज के बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर आई विल टीच यू द स्टेप्स. ठीक है? तो अभी we are done for today, and I want to thank you all. Very nice. A lot of people are sending beautiful messages. Thank you so much. देवी सर्कल की टीम जो है, मैं उन सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ for being so beautiful and doing such great work. A deep felt gratitude to Ananda Karunesh ji as well. और wishing you a beautiful evening. और बाकी कंट्री से जो लोग आए हैं, थैंक यू. आप अपने सब टाइम निकाल के आए. See you tomorrow, सेम टाइम, इंडिया के 4 बजे, और हम देवी क्रिया सीखेंगे. और जो भी आपके प्रश्न, क्वेश्चंस, एनीथिंग यू हैव, I will address them tomorrow. Okay? So today just relax and be. I hope कि आप कल आएंगे, because otherwise you will not be able to get the whole benefit of it. All right. Thank you, everybody. Take care. आप सबको नमस्ते, प्रणाम. Thank you very much. See you tomorrow. Bye.